Hi guys, welcome back to my YouTube channel TU Scholars. So this is the second part of the one shot video that we are covering, in which we are covering the principles of management का whole syllabus through this book, and unit 2 तक 6 chapters की video is already uploaded, and within 1 hour and 45 minutes we have covered all 6 chapters and whole unit 1 and unit 2 in that video in detail. तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम भी उसको व्यू करते हो, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड समराइज्ड इन अ समराइज्ड वे, एंड आपके लिए इनफ लर्निंग होगी फॉर राइटिंग इन द एग्जाम एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स, राइट. सो इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग यूनिट 3, 4 एंड 5. उसमें क्या क्या कवर करेंगे, लेट्स सी दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 3 अभी हमने कर क्या लिया. यूनिट 1 में वी हैव डन नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग मिक्स में मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट एंड सर्विस मार्केटिंग का बहुत अच्छे से कवर किया था. देन मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वी डिड माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट एंड इंडियन मार्केट में कैसा इन्वायरमेंट होता है. देन कंज्यूमर बिहेवियर बहुत अच्छे से आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल फुल चैप्टर, नीड, टाइप्स, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस. उसके बाद वी डिड द चैप्टर ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड टारगेट. ये तीनों मतलब टॉपिक्स इन दीज 2 चैप्टर्स इज कवर्ड इन डिटेल. तो मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या होते हैं, सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग, देन प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. तो यहाँ तक वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट वीडियो, यहाँ तक, ठीक है, यूनिट 2 तक. उसके बाद नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स यूनिट 3, दैट इज़ आर प्रोडक्ट डिसीजन, जिसमें विल बी कवरिंग 3 चैप्टर्स ऑफ यूनिट 3, 4 chapters of unit 4, that is 7, and 2 chapters of these 9 chapters of all 3 units will be covered in this video. So let's start. This is all done. From here unit 3 starts. So let's start with the chapter of product decisions. So product decisions के चैप्टर में what all will cover is the basic concept of product mix, जिसकी थोड़ी सी insight I gave you with marketing mix also, and then the branding का concept, ठीक है. ये 3 concept will be covering. So let's start. सबसे पहले प्रोडक्ट होता क्या है, वट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट इज बेसिकली एनी टैंजिबल और इनटैंजिबल फॉर्म में कुछ भी चीज़ दैट इज सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स की नीड, ठीक है. सो इट शुड हैव टू प्रायोरिटीज, two concepts that two attributes, I would say. Number 1, it should have the form, that is the physical or the tangible or the intangible form, and the second attribute it should cover was it should be satisfying the need of the consumer. So if these two criteria are fulfilled, then that thing is the product for the market, right. So in the narrower sense, the product is simply a set of tangible, physical or chemical attributes assembled in an identifiable form, ठीक है. तो बेसिक तो ये होता है, but a consumer does not merely buy the physical or chemical attributes of product, he really buys the want satisfaction, ठीक है. So a wise firm sells product benefits rather than just the product. So it a product in a broad sense, product is combination of tangible and intangible attributes including packaging, color, price, manufacturing prestige, retailer's prestige, manufacturer and retailer service, which buyer may accept as offering and satisfaction of wants and needs, ठीक है. तो इसमें क्या क्या होता है composed, physical and chemical attributes, want satisfying attributes, and brand, package, label, color, size, shape, price, service and all this, ठीक है. सो इन द वर्ड्स ऑफ कॉटलर की जो हम डेफिनेशन स्टार्टिंग से लर्न करते आ रहे हैं, व्हाट डज कॉटलर से. कॉटलर सेज दैट अ प्रोडक्ट, वन सेकेंड, a product is anything that can be offered to market for attention and acquisition of or consumption. It includes physical objects, personalities, places, organization and ideas. So it make the distinction between concept of product, namely core product, basic product, expected, augmented and potential. These 5 concepts are there in the product का concept, ठीक है. फर्स्ट इज द बेसिक प्रोडक्ट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है. एक्सपेक्टेड इज व्हाट्स बेसिक एक्सपेक्टेशन अपार्ट फ्रॉम बेसिक प्रोडक्ट.
then augmented product is one step ahead of expected, and then the potential what in future the product can expect to be. ठीक है, so these are the levels of product. So level में सबसे पहले core product. So core product is basic features and aspects of the product. It is a bundle of tangible intangible features that seller offers in the marketplace. It's a basic thing. And then what is the basic product? Basic product includes the core benefits along with essential features. मतलब अगर if you are taking the example of phone for example, so phone में the machine, the operating system is the core product. Then what is the basic product? The body, the plastic, the screen that you are able to touch it, the camera, or that basic things that anything makes the product a fulfilling available to the market thing, that is called the basic product. So in a smartphone the basic product include physical device, ability to make calls, send messages, etc. ठीक है. Then what is the expected product? Expected product is the camera or the additional features that can be included in that thing. So that is the expected product, that the minimum expectation of buyer to so that that product meets the standard in the market. So the expected product incorporates features and attributes that customer expect as the standard in the product category, right? It fulfills the customer's expectation and an offer based on the industry norms and customers competitors offerings. For example, in a smartphone expected features might include a camera and access to apps, internet browsing, etc. Okay, then what is the augmented product? Augmented product includes any USP that you are offering. For example, if we are taking the example of a smartphone only, so your battery backup कितना अच्छा है आपके फ़ोन का, how good quality photo it can capture, और what is the storage being offered, how आजकल तो हर फ़ोन में हर ब्रांड का, जैसे if you are talking about Motorola, if you are talking about Samsung, हर ब्रांड के फ़ोन में there is their own AI model, right? So that is also a part of augmented product. ठीक है, तो Motorola में Moto AI is there, OnePlus में कोई AI is there. तो हर product का AI plus feature over the expected thing is called augmented product. The fourth level of product is known as augmented. At this level additional features, benefits and services that enhance the product value are in focus. ठीक है, so for example for a smartphone augmented features could include a longer battery life, cloud storage or customer support. ठीक है, then what is the potential product? Potential product is what we call the future potential की आगे what you could offer to the customers. This covers all the future enhancements and modification a product might experience. So these innovations are not only currently offered but represent product's future potential for improvement and expansion. A loyal customer base can be created if products are introduced on time. In case of smartphones and new customers software, AI technologies, holographic displays and new connectivity option can be regarded as a potential feature. अब ये potential augmented में shift हो गया, but पहले तक जब ये बुक प्रिंट हुई होगी या उससे पहले तक AI was just the potential one. ठीक है, so Kotler's 5-level product framework provides a comprehensive view of how customers perceive products value and how business can deliver value at the different levels. ठीक है, so इसकी classification अगर products की देखें तो different classification होती है that are very basic and common. First is consumer products, then industrial product, उसके भी further examples हैं. Then if we classify the product on the basis of usage and application, then tangibility and intangibility, then durability and price and quality, branding, differentiation and product line and product mix. ठीक है, so these are 8 the classification of the product. तो consumer में भी नो की convenience products होते हैं जिसमें basic आ जाते हैं स्नैक्स, टॉयलेटरीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स. शॉपिंग में आ जाते हैं थोड़े अच्छे दैट वी डोंट buy that often as the convenience product, like buying electronics, furniture and all. Specialty products is the designer clothes and high-end electronic. Unsought products are the products that may not be actively seek out, such as life insurance, burial plots and all. That are the unsought products. Then we talk about industrial products. It includes material parts, capital items, then supplies and services and all. ठीक है, then usage के basis पे consumer durables and consumer non-durables, industrial durables and industrial non-durables. Very basic, self-explanatory they are. Then tangibility, tangible products and intangible products. Then durability के हिसाब से अलग classification बना दिया. These classification help marketers to understand the characteristics and different types of products, enabling them to tailor their marketing strategy accordingly. ठीक है,
Then talking about what is the product policy. Product policy is basically the principle of operation that is adopted by management to guide those who carry out the action. ठीक है, so मतलब top management make the vision for the organization, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत ही अलग अलग what we say the small targets are divided into departments, and then small targets are then achieved by the teams of that particular department. So that product policy is basically the principal operation of management. Okay, so the policy is a set of objectives that is to be achieved and also the limits within which the management has to operate. Okay, so what are the elements of product policy? Number one is the product item, line, and the mix. What product item you are gonna sell it, what in which line, and in which combination you are gonna sell that item. Okay, so product decision are to be made on 3 different levels, that is the product item, line, and product mix. Item is basically the individual product or the specific version of that product that has to be separate designation in the seller's list. Line refers to the group of that product that it relates to. It can be classified together for reasons of similarities. And talking about the mix, it refers to the composite of all the products offered for the sale. Sorry. Okay, so these are the first element of the product policy. Then talking about, ये example दिया इन्होंने, ये जो इतना बड़ा सारा है ना फिलिप्स का, पढ़ लेना, ये जस्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसको रिलेट करने के लिए. देन उसके बाद सेकेंड एलिमेंट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. सो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है? जो भी हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं किसके लिए? ताकि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है टिल रीचिंग टू दैट कंज्यूमर, वो सारे प्रोसेस को कैसे विजुअलाइज कर रही है एक कंपनी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग. एंड उसके हिसाब से उस प्लानिंग को फुलफिल करते हुए ही व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स यू आर डूइंग इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो प्रोडक्ट प्लानिंग डिटरमाइंस द नेचर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड और सोल्ड. यूजुअली कवर्ड व्हाट फंक्शंस. सबसे पहले दे विल इवैल्यूएट द प्रोडक्ट आइडिया, द मार्केट एंड द बेसिकली व्हाट द प्रोडक्ट विल बी. देन इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज रिसोर्सेज. देन व्हाट आर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन. Then improving the existing product or improving based on the feedback of the consumer basically. Then developing the new product, then testing, marketing, and evaluating the result if it fulfills the consumer needs now or not. Then what are the advantages of product planning? Why product planning is important? So basically it is acts as the basis for marketing program, because we are studying principles of marketing, and marketing may we did studied in those units that marketing is basically marketing basically start from before product is being produced. मतलब research stage से लेके after the product is being sold to the consumer, after sale services तक भी that whole process is included in the marketing. So इतने बड़े broad concept को plan करना is also very important. So basic उसका need is the product. तो उस product की planning is also a part of marketing का planning. So that is why product planning is very important. That determines the nature of the product at which constitutes the basis of the entire marketing process activities. ठीक है. Then it also increases the sales because new customers and will be included whether you are planning in a good way, good manner, fulfilling the responsibilities of the society as well as the consumer. So the sales of your product will also increase. Then it will result in survival and the growth prospects in the long term. Then you will also face the competition. So it's better to keep a dynamic plan so that you can you can cope with that competition as well, and your USP is maintained in the market. Then you should minimize the risk and improve the performance. Then the third thing is the standardization. Third element of product planning is the standardization. That just a standardization we also saw in unit 2 that STP model is basically the standardization ka one of the examples. Like STP is segmentation, targeting, and then positioning. So it is basically standardizing the market and then performing based on that, right? And then the आउटपुट पार्ट. ठीक है. तो वैसे ही प्रोडक्ट में यू नीड दैट स्पेसिफिकेशंस की फर्स्ट यू मे सेट द स्टैंडर्ड and work according to your standards and achieve the outputs based on your standards कि हाँ whether it is being fulfilled or not. So वैसे ही product standardization is very important to do the process smoothly.
ठीक है. सो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स और अ मेजर दैट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द फिक्स्ड वैल्यू. स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइंड विद रिगार्ड्स टू वेट्स एंड मेजर्स एंड सारे उसके एस्पेक्ट्स जो भी कवर करने हैं, ठीक है, जो भी एक प्रोडक्ट के होते हैं. तो एफसी क्लार्क की एक डेफिनेशन है, इफ यू वांट टू यू कैन ये लर्न द स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेशन बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो यहाँ तक था हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट मिक्स. क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट प्रोडक्ट मिक्स इज बेसिकली हाउ योर कंपनी इज सेलिंग द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और द इनपुट आउटपुट रेशियो, राइट. सो कौन से प्रोडक्ट से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है एंड कितने रिसोर्सेज लगा के कितने आपको आउटपुट मिल रहा है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर व्हेन यू डिसाइड कि विच प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड विच प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मिक्स. सो प्रोडक्ट मिक्स इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स और आइटम्स दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स टू सेल फॉर द बायर्स. दिट इज द फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन जो आपने लर्न करनी है. सो कंपोनेंट्स का रहते हैं प्रोडक्ट मिक्स के, ये 4 कंपोनेंट्स रहते हैं: वेट, length, depth and consistency. So width is basically the range of product lines that a firm offer to the consumers. Length is all the products of that product line and depth is हर product line के अंदर कितने कितने products आ रहे हैं, that is the depth of that product line. Then उसके बाद consistency is basically how closely each component of that product line is related. So these are 4 components of product mix. For example, if we take the example of Coca-Cola. Coca-Cola की इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है, ये देखो. तो Coca-Cola सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बनाती है और Coca-Cola जूसेस भी बनाती है, ठीक है. तो ये जो 2 चीज़ें बना रही है, दिस इज द प्रोडक्ट विड्थ, ठीक है. और इस सॉफ्ट ड्रिंक में ये जो 4 चीज़ें आ रही हैं, राइट, ये 4 चीज़ें जूसेस की उसमें आ रही है, दिस इज द प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है. और ये दोनों मतलब these 4 plus these 4, these 8 is the product length. प्लस इसकी कंसिस्टेंसी क्या होएगी कि आपस में कितने रिलेटेड है. कोको कोला फैंटा से कितना रिलेटेड है, स्प्राइट कितना रिलेटेड है, कोक जीरो कितना रिलेटेड है, ऑल आर दी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. सो दिस इज द कंसिस्टेंसी. द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक सेक्शन इज वेरी हाई. ऐसे करके ही जूस का भी होगा. तो दिस इज द कंसिस्टेंसी. तो दीज 4 फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है. सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? प्रोडक्ट मिक्स से आपको समझ आ जाता है कि आपने रिस्क कैसा रखना है, कि आपका रिस्क लो रहेगा. कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला एरिया नहीं चला तो आप जूसेस वाले पे कर लो शिफ्ट, तो एक तरह से रिस्क आपका बढ़ जाता है, ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी इस हिसाब से ही. तो बेटर केटरिंग ऑफ डिमांड्स मतलब आपका प्रोडक्ट अपना कंज्यूमर बेस अच्छा रहेगा. देन चॉइस रहेगी कंज्यूमर्स को. देन इट विल हेल्प टू क्रिएट ट्रस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रहती है, ठीक है. देन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्ट मिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट मिक्स आप कैसा बनाओगे. प्रॉफिट अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट मिक्स अच्छा बनाना है. अगर आप सिर्फ कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहते हो, प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, तो आपका प्रोडक्ट मिक्स उस हिसाब से बनेगा. देन व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट विल आल्सो डिफाइन द प्रोडक्ट मिक्स. देन व्हाट इज़ द डिमांड इन द मार्केट. देन उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट विल आल्सो डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा रहेगा. सो मैन कॉम्पिटिशन एंड इकोनॉमी तो ऑलवेज साथ में चलता ही रहता है, ठीक है. तो दिस वॉज दी प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट. देन टॉकिंग अबाउट लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ब्रांडिंग. सो ब्रांडिंग इज बेसिकली what the consumers, ज़्यादातर कंज्यूमर लुक फॉर, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट. सो ब्रांड इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैट इंक्लूड्स नैरोअर टर्म्स. कौन से? जैसे कि ब्रांड नेम, मार्क एंड ट्रेडमार्क एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग. ये 4 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एक ब्रांड में, ठीक है. सो ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम इज़ बेसिकली द वर्ड्स और लेटर, जो नेम होता है, जो हम बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो दैट इज़ द प्रोडक्ट का नेम, ठीक है. सो ब्रांड मार्क क्या होता है? जो आपको मार्क दिखता है, जो ड्राइंग होती है एक तरह से, जिसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो ब्रांड को, दैट इज़ द ब्रांड मार्क. ट्रेडमार्क इज़ बेसिकली लीगल, उसके लिए होता है, लीगल आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट दिस इज ट्रेडमार्क. और कोई भी मर्च या उसके ऊपर है तो दैट इज द ट्रेडमार्क ऑफ द मैन्युफैक्चरर. प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज बेसिकली गिविंग अ नेम टू द प्रोडक्ट बाय विच इट शुड बी नोन इन द मार्केट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फेविकॉल और उसका, तो उसने प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर दी अपनी कि फेविकॉल वो ग्लू नहीं है, वो फेविकॉल ही ग्लू है. तो दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज.
फंक्शंस क्या रहते हैं, बहुत बेसिक है. प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, डिस्टिंक्टिवनेस मिल जाती है, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी मिल जाती है, इमिटेशन के चांस कम हो जाते हैं, लीगल राइट्स मिल जाते हैं बिकॉज ट्रेडमार्क इज इंक्लूडेड. देन एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग में आपको ईजी होती है. देन सेलिंग प्रोसेस में आपको ईज होती है. देन इट्स सस्टेन द ब्रांड लॉयल्टी, प्राइस डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हो, एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. ठीक है. सो क्वालिटी क्या, एक गुड ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहले तो इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस. ठीक है. सो जैसे मैगी वी से, नेस्ले, very easy to pronounce, that is it should be simply easy to pronounce. Then short and concise होना चाहिए. It should reflect the nature of the product, and then it should be attractive to the consumer. It should be legal and flexible. Very basic, कि आप ऐसे ही read भी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा. Then what are the types of branding? Product branding जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, it is the most common branding that we as a consumer witness on a daily basis. So the goal of product branding is to impact the perception in the market and in the minds of consumer by using the interesting names, slogans or bright colors or even the mascots. ठीक है. Then personal branding होती है person की personal branding is basically जैसे आपको कोई भी ad में कोई शाहरुख खान दिख जाए, right, I mean कोई भी एड में शाहरुख खान दिख जाए, कोई आपके नोन एक्टर्स दिख जाए, तो आपको लगेगा कि ये जो ब्रांड है दैट इज़ मोर ट्रस्ट वर्दी, राइट. सो दैट इज़ द पर्सनल ब्रांडिंग. उनकी पर्सनल एज अ पर्सन दे हैव बिल्ड देयर ब्रांड, तो दैट इज़ द पर्सनल ब्रांडिंग. सर्विस ब्रांडिंग इज बेसिकली नोन फॉर द सर्विस. जैसे कि इफ़ वी नो कि HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का आपको नहीं कहीं भी नहीं लिखा दैट ऑफर्स अ लॉट ऑफ सर्विस लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन है. तो इसकी वजह से आपको इंटेंजिबल सर्विसेज की जो ट्रस्ट बिल्ड होता है दैट इज़ द सर्विस ब्रांडिंग. देन जियोग्राफिकल ब्रांडिंग भी ऐसे होता है कि आपके एरिया के बेसिस पर व्हेन इट इज़ नोन कि अच्छा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सरसों का साग देन इट इज़ फॉर पंजाब ओनली. तो ऐसे करके यहाँ पे जैसे दार्जिलिंग टी की बात करिए, बनारस साड़ी की बात करिए, दैट इज़ जोग्राफिकल ब्रांडिंग. ऑनलाइन ब्रांडिंग जो आपके ईमेल्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल से होता है, दैट इज ऑनलाइन ब्रांडिंग. ऑफलाइन ब्रांडिंग एंड को ब्रांडिंग ऐसे ही हमारे यहाँ. को ब्रांडिंग क्या होती है, जब व्हेन 2 और मोर ब्रांड्स कोलैबोरेट टुगेदर टू रेज द प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर, दैट इज द को ब्रांडिंग. ठीक है. So with this our first chapter of unit 3 is over. Then talking about second chapter, that is packaging and labeling. Packaging and labeling क्या होता है sorry. So packaging sorry packaging, sorry one second. Okay, so talking about पैकेजिंग एंड लेबलिंग. सो पैकेजिंग क्या होता है, जो भी टैंजिबल पैकेज होता है आपके किसी भी प्रोडक्ट का, जो ओवरऑल आउटर पैक होता है दैट इज द पैकेजिंग. एंड लेबलिंग इज व्हाट इन्फॉर्मेशन दैट पैक इज टेलिंग यू अबाउट द प्रोडक्ट. सो दैट इज द लेबलिंग पोर्शन. ठीक है. So packaging is basically defined as all the activities involved in designing and producing container or the wrapper for the product. That is the packaging. ठीक है. So क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें. पैकेजिंग इज ब्रॉडर टर्म एंड पैकिंग इज द नैरोअर टर्म. ठीक है. सो पैकेजिंग में आपके लेबलिंग एंड ऑल सब कुछ इंक्लूड होता है, बट पैकिंग इज ओनली द रैपर पन. ठीक है. सो पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग, रैपिंग और द creating goods into package for the purpose of delivering articles to the consumer. ठीक है. So the physical product needs some packaging incorporate. Developing the package for a new product requires large number of decisions, representative from marketing and production to participate along with the technical aspects. ठीक है. So establishment of packaging का concept, then decision on the component element, then application of test on the package design. ये 3 steps होते हैं in the packaging का. ठीक है. So what is the purpose of packaging? सबसे पहले it is important to protect from damage, तो इसलिए पैकेज होता है. नंबर 2 आपको कन्वीनियंस के लिए, ऑल्सो इसके एस्थेटिकनेस की वजह से सेल भी बढ़ती है, तो प्रमोशन के लिए भी होता है, इकोनॉमी के लिए भी होता है. इंपॉर्टेंस क्या रहती है, सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन आपका आप पैक को देख के, कई लोग सिर्फ पैक को देख कर ही प्रोडक्ट बाय करते हैं. सो इट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफन first impression that consumers often see when encountering with the product. Then visual appeal, देखने को अच्छा लगता है, attractive to eyes होता है, appealing to eyes होता है, differentiation करता है. जैसे आमची की पैकेजिंग इफ़ यू सी, तो उनकी पैकेजिंग
ही एक मैंगो की तरह थी, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट विजुअली अपील टू द कंज्यूमर्स. तो डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है अलग अपने उनसे, ठीक है. देन पैकेजिंग इटसेल्फ कम्युनिकेट्स कि हाँ इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है. देन ब्रांड की आइडेंटिटी रहती है, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, कन्वीनियंस, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. 15 पॉइंट्स आर देयर, जितने मर्जी लिख दो, ठीक है. सो इन टूडेज कंज्यूमरिक society, outward appearance matter more than so it would seem. And so first stage of buying decision that is determined by packaging of a product. Presently the importance of packaging has grown way beyond imagination and is considered one of the most vital tool for marketing. ठीक है. टाइप्स क्या क्या रहती है ये हमने पहले भी पढ़ा है. what is primary packaging, secondary packaging, tertiary and ancillary. ठीक है. सो प्राइमरी पैकेजेस बेसिकली सबसे जो बेसिक होता है, लेमिनेशंस या ट्यूब्स या ग्लास जार्स एंड टिन कैप, दैट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग. सेकेंड इज उस प्राइमरी को कवर करने के लिए फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेकेंडरी पैकेज होती है. देन टर्शरी मतलब और सुंदर बनाने के लिए, ये तो दो थे प्रोटेक्शन के लिए. देन टर्शरी एंड एसिलरी इज फॉर एनहांसिंग द लुक ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है. देन आते हैं लाइक सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज द लेबलिंग. सो लेबलिंग इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट बाय अटैचिंग अ लेबल दैट व्हाट इट कंटेन्स, दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट और द कंटेनर, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशंस है कि क्या होता है. टाइप्स ऑफ लेबलिंग पे आ जाते हैं. लेबलिंग क्या क्या इंक्लूड होता है. सबसे पहले ब्रांड लेबल, ब्रांड की कौन सा है. देन डिस्क्रिप्टिव लेबल कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हम कई बार देखते हैं. ये देखो मैगी के पैकेट का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, सॉरी, कि ये जो छोटे छोटे होते लिखे होते हैं ना साइड पे, दैट दिस इज द डिस्क्रिप्टिव लेबल्स. देन ग्रेड लेबल. ग्रेड लेबल इज क्वालिटी चेक, जो ISI मार्क होता है, दैट इज द ग्रेड लेबल, ठीक है. ब्रांड लेबल इज प्रोवाइड बाय द ब्रांड, इट डज नॉट ऑफर सफिशिएंट डिटेल्स, जस्ट ब्रांड नेम बताता है आपको, दैट इज द ब्रांड लेबल. Descriptive is the date and storage detail included on the descriptive label for the food. Grade label is classified as grade A, B or C, ठीक है. So labeling can also be classified with respect to purpose it serve. कौन कौन सा पर्पस देखते हैं उस हिसाब से भी हम लेबलिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं. यूसेज लेबलिंग, एनवायरमेंटल लेबलिंग, ये अलग अलग टाइप की बहुत सारी है, एक बार आप ये भी रीड कर सकते हो. वार्निंग, प्रमोशनल, प्राइवेट, न्यूट्रिशनल, कंट्री ऑफ ओरिजिन, बार कोड एंड QR कोड, ठीक है. देन फंक्शंस क्या होते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि लेबलिंग के फंक्शन क्यों हम कर क्यों रहे हैं लेबलिंग. सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप लेबल करके बता दोगे. ब्रांड अगर लेबल्ड होएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, देन द क्वालिटी इज अश्योर्ड टू द कंज्यूमर. ऑल्सो प्रमोशन के पर्पज सर्व करती है. आइडेंटिफाई, आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन का पार्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है. तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने इकट्ठे बता दिया आपको. एंड देन ग्रेडिंग भी आपकी साथ में इंक्लूड हो जाती है कि ISI मार्क्ड है या नहीं. एंड इट ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट अ कंप्लायंस विद द लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है लेबल करने की, तो वो भी आपकी कंप्लाई हो जाती है. देन व्हाट आर द एथिकल एस्पेक्ट्स, कि कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं लेबलिंग करते टाइम. सो व्हाट आर द सम एथिकल इश्यूज इन लेबलिंग, कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बता देते हैं. कई बार गलत चीज़ बता देते हैं लेबल पे, जिसकी वजह से कंज्यूमर उसको गलत समझता है. तो जिस वजह से वो प्रोडक्ट बिकता तो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, तो वो कर देते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, बट इन द लॉन्ग रन द कंज्यूमर इज़ नॉट विद देम. तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो कंपनी को अचीव हो जाता है, बट नॉट द लॉन्ग टर्म वन. सो एक्वायरिंग लाइसेंस, एवरी फूड ऑपरेटर बिजनेस हैव टू बी रजिस्टर्ड विद FSSAI एंड द लाइसेंस इशूड फॉर द फर्म मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन द मेजर पैनल. उसकी वजह से वो बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है उसका, कंज्यूमर्स का, ठीक है. देन प्रोडक्ट सर्विस, सपोर्ट सर्विस इज द कंज्यूमर सर्विस. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आपको उसको कंसल्टेशन दे रहे हो. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इंक्लूड होती है, बिलिंग की सर्विस आती है. देन पेमेंट्स कैसे होनी चाहिए, ऑर्डरिंग, ये सारी क्लासिफिकेशन रहती है आपकी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस में, ठीक है. ये एक बार आप पॉज कर लेना, नॉट दैट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जस्ट आप इसकी हेडिंग्स लर्न कर लोगे, देन इट विल बी मोर देन इनफ.
सो अब 7 पॉइंट्स आर बोथ टैंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए हैं. इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू अचीव बिग मार्केट शेयर, ऑल दिस प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस शुड हैव अ सेट स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी एंड द स्टाफ शुड बी वेल ट्रेन टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बेनिफिट क्या होता है गुड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस का? सबसे पहले अगर आप गुड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस दोगे तो आपको रिटेंशन परसेंटेज आपकी जो कस्टमर्स की है वो इंक्रीज रहेगी और बनाने में, मेंटेन करने में हेल्प करती है. व्हेन द परफॉर्मेंस मैचेस विद द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट देयर इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो आपके पास ही दोबारा लौट के आएगा, तो कस्टमर रिटेन्ड भी रहेगा. मीटिंग द एक्सपेक्टेशन लॉन माइट नॉट बी एडिक्वेट इन द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री विद रेगुलर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. कस्टमर ऑल्सो नीड टू बी प्लेजेंटली सरप्राइज विद बिजनेस बाय चैलेंजिंग देमसेल्व्स टू सरपास द एक्सपेक्टेशन. तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो करना है. देन it also increase the profitability. When your service is good, your referrals are good, then you will be able to pick up the fresh customers for a lot less money that you have planned to do so highest return aate hain if your initial investment is good. Then it also boosts the confidence to the employees, that if the customer recommends your company, that it also improves the company's morale, employees morale, that the trust in your company is improved. Then it creates a holistic market scenario, that a business as a whole transform into a business holistic marketing scenario where everyone is contributing to the ultimate goal of the customer satisfaction. This is achieved when the employees are motivated and you have the insight into the customer mindset. You also get the competitive advantage. Your ability to provide excellent customer service and hire a skilled workforce can provide you a competitive edge over your competitors. Okay, so with this our second chapter is also over. थर्ड वन इज़ आर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, PLC एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, पहले मैं आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करा देती हूँ, या फिर आपको पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, उसके एक ही कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट्स ही हैं सिर्फ. तो उसके बाद विल मूव टूवर्ड्स PLC, क्योंकि PLC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में. मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज़ PLC ओनली, जिसके बारे में विल स्टडी. मैं आपको पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराती हूँ, फिर हम PLC पे हो जाएंगे. ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है? सो इट इज़ बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो ऑलरेडी मार्केट में, उसमें कुछ इनोवेशन लाना, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग एज अ फीडबैक फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, राइट. या फिर ऐसे करना, इम्प्रूव करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, या फिर इंट्रोड्यूस करना अ न्यू प्रोडक्ट इज ऑल्सो covered under new product development. तो ये दो branches रहती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की. सो न्यू प्रोडक्ट डिफर विद रिस्पेक्ट टू विद पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द फर्म. सम प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व न्यू प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज विच अदर्स डू नॉट हैव, एंड from marketing point of view, some new product may offer variety and new benefits while other may not be doing so. So complex problem arising from development and distribution of new products are gradually attracting and more attraction of the businessman. तो इसमें basically हम बात करते हैं innovation and perish के concept की, कि आप innovate करो वरना वो perish हो जाएगा. So it should be watchword for the management. ये रहा कॉन्सेप्ट. एंड देन वो टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या रहती है, जो हमने पहले भी करी थी, कि प्रोसेस क्या रहती है कंज्यूमर बिहेवियर की. सबसे पहले यू आइडेंटिफाई द आइडिया. what is the idea generation your employees are giving or the senior management is giving to analyze. Then idea screening is done, whether it is feasible for the company to work on that idea to give that tangible product or not. then उसके बाद concept development and testing होती है. जो product idea screening के time finalize हो गया कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन दी आइडिया जनरेशन, तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, उस कॉन्सेप्ट को टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है, पायलट टेस्टिंग होती है. पायलट टेस्टिंग इज़ व्हाट? पायलट टेस्टिंग इज हम थोड़े से ग्रुप ऑफ पीपल को वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए देते हैं फॉर अ वेरी लेस प्राइस और नेग्लिजिबल प्राइस, सो दैट दे कैन गिव अस द फीडबैक कि इसमें क्या इंप्रूव हो सकता है और वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं. उसके बाद उन फीडबैक्स के हिसाब से बिजनेस एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पर फिर से डेवलपमेंट होती है, फिर उसके टेस्ट मार्केटिंग होती है, एंड देन इट कमर्शलाइज की मेन मार्केट में कमर्शलाइजेशन के प्रोसेस के टेस्ट मार्केटिंग के प्रोसेस में के बाद जाता है. एंड कमर्शलाइजेशन इज बेसिकली कन्वर्टिंग दैट प्रोडक्ट इनटू
मनी इन द प्रॉफिट यू आर अचीविंग फॉर, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बेसिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको रीड करना तो यू कैन रीड, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। इतना सही कॉन्सेप्ट था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। नाउ विल मूव टूवर्ड्स दी PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 1 सेकेंड, दिस इज PLC, ठीक है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? सो जैसे हमें पता है प्रोडक्ट की ना 4 स्टेजेस होती है जिसके थ्रू प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट गुजरता है। अब इसका एग्जांपल हमारी लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे पहले हमारा बर्थ होता है, फिर हम एडल्टहुड, टीनेज में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं, फिर हम मेच्योरिटी स्टेज में आते हैं, मतलब व्हेन वी गेट मैरिड एंड ऑल। उसके बाद वी मूव टूवर्ड्स द ओल्ड एज। तो ऐसे 4 to 5 स्टेजेस रहती है एक ह्यूमन लाइफ साइकिल की। वैसे ही प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल रहती है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है जहाँ पर वो मैक्सिमम अपने पोटेंशियल लेवल पे होता है। देन मैच्योरिटी आती है उसकी कि प्रोडक्ट एक स्टेज पे जाके उसके बाद उसकी सेल्स कम होनी शुरू हो जाती है। देन डिक्लाइन इज, जहाँ पर उसकी सेल्स नेगेटिव होती है या बिल्कुल कम हो जाती है। सो इस सेल्स के इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली प्रॉफिट पे। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने ये चीज़ यहीं लिखी है, ये जो पैराग्राफ है सारा, ठीक है। अब इसमें हमारी मार्केटिंग स्टेज वो क्या होना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। पहले चलो स्टेजेस के बारे में जो इन्होंने फीचर्स एंड ऑल दी है वो भी ये देखो, स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बेसिक हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेज में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिगिन व्हेन न्यू प्रोडक्ट बिकम्स फर्स्ट अवेलेबल फॉर सेल। न्यू प्रोडक्ट इज फर्स्ट becomes available for sale. So the sales start picking up. During this stage, the product is launched into the market in a full-scale production and marketing program. ठीक है. The objectives during this is to develop the customer market. सबसे पहले आपका बेस बनेगा तभी you will do something उसकी ग्रोथ की तरफ आप देख सकते हो। पहले आपका बेस तो हो, तो कस्टमर मार्केट डेवलप करना इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज। फीचर्स क्या रहते हैं स्टेज की? सेल इज स्लोली showing the increasing tendency, then competition is very limited, undetected technical or marketing problem may surface, one basic model is offered, then pricing may be very high or very low। अभी pricing कैसे very high and very low इतने extremes क्यों लिखे हैं यहाँ पे, that I'll tell you in the marketing strategies का, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्राइस कि कब हाई कब लो होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। सो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। लॉसेज आर टू मच मोरली लाइकली टू अकर दैन प्रॉफिट। देन प्रमोशन मस्ट बी इन्फॉर्मेटिव, कूपन गिफ्ट्स डिस्काउंट में बी ऑफर टू अट्रैक्ट दी कस्टमर्स, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, इसके 2 क्राइटेरिया रहेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द प्राइस एंड द प्रमोशन। ये 2 क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए विल मूव frame the marketing strategies for the product who is in the introduction stage, ठीक है। so if you are doing high production and charging very high price, so ऐसी strategy को बोलते हैं rapid skimming strategy। rapid skimming strategy इसका नाम क्यों है? that you are skimming the cream of the market on very fast pace। पहले ही सबसे पहले you are collecting the cream of the market। तो what are the cream मतलब rich people you are targeting। सबसे पहले you are doing high promotion, high expenditure on promotion and you are charging the highest possible price। तो that strategy is called skimming strategy, जिसमें आप maximum profit थोड़े टाइम में ही cover up कर लेते हो, ठीक है। then if you are introducing a price which is a low price, पहले आप you are keeping the low price but your promotion expenditure is yet high। so जैसे कि जियो ने किया था, उसका प्रमोशन एक्सपेंडिचर वॉज वेरी मच बट द प्राइस वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब फ्री में भी दे हैव गिवन द प्लान्स। तो दैट वॉज रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, दैट यू आर कैप्चरिंग द मैक्सिमम मार्केट शेयर, जिसकी वजह से यू आर maintaining your you are capturing the market
सो दैट आप अपनी कोई स्पेस बना सको इन द मार्केट, क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी इतनी कॉम्पिटिटिव है कि न्यू पर्सन कैन नॉट एंटर. सो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी वहाँ पर हेल्पफुल होती है. ठीक है. उसके बाद बात करें, अगर आप प्रमोशन कम कर रहे हो, तो प्रमोशन कम कर रहे हो और प्राइस ज़्यादा रख रहे हो, प्रमोशन कर ही नहीं रहे हो, नेग्लिजिबल प्रमोशन कर रहे हो, बट प्राइस आपका बहुत हाई है. जैसे कि एप्पल पहले पहले करता था, वो प्रमोशन नहीं करता था बट उसका प्राइस फिर भी बहुत हाई था. दैट इज़ द स्लो स्कीमिंग पॉलिसी, स्लो skimming strategy. धीरे धीरे you are skimming the cream of that market. And if you are doing negligible promotion and yet you are keeping the lowest price, that is the slow penetration strategy, जो कि जनरली लोग करते हैं कि प्रमोशन पे भी खर्चा नहीं करते और प्राइस भी एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं. दैट इज़ द स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. सो ये 4 स्ट्रैटेजीज रहती है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए. समझी होंगी इजीली तो आप लिख पाओगे, एग्जाम्पल्स के साथ लिख पाओगे. बट इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो जस्ट रट्टा मार के जाना है, तो दैट इज़ अप टू यू. ठीक है. तो अगर इफ़ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो ये एक डायग्राम ज़रूर बना देना. ठीक है. ये अगर आपने रीड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो. रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, इसके ना एजम्पशंस देखो. Rapid skimming में entire potential market is unaware of the product. Those who become aware, they are eager to buy it and capable of payment also. Firm faces potential competition and want to build up the brand preference. ठीक है. Then slow skimming में क्या होता है, assumptions होती है that market size is relatively limited. Most market is aware of the product. Those who are willing to buy are capable to pay also. They are in little danger of potential competition. Rapid penetration strategy में we assume that the market is large in size. They are unaware of the product. Strong potential competition है and low price पर ही buyers खरीदेंगे because companies unit price cost fall within the scale of production and the experience. Slow penetration strategy में assumption होती है that market is very large. A market is highly aware and buyers want to afford to pay allow the price and some potential competition is also there. ठीक है. तो इतना था हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में. देन टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज में क्या क्या होता है? ग्रोथ स्टेज इज वेयर द प्रोडक्ट स्टार्ट टू पीक विद द सेल्स का वॉल्यूम. सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ता है, लाइकवाइज प्रॉफिट भी बढ़ता है. तो buyers will continue to purchase and large number of conventional consumers begin to follow the lead. Then the increase in the number of competitors lead to increase in the number of distribution outlets. Economies of scale आता है. Prices either remain or where they are and fall only slightly. थोड़ा सा गिरता है क्योंकि maturity में they start to fall. Profit margins are at peak during this stage due to economies of scale. Then marketing strategies are strategies क्या क्या रहनी चाहिए to sustain in this टाइप ऑफ स्टेज. सबसे पहले यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट क्वालिटी सो दैट आपकी जो ब्रांड इमेज है वो बनी रहे. देन सर्च आउट टू द न्यू सेगमेंट्स को कैप्चर करो. ऐसे फीचर्स लाओ कि अलग सेगमेंट्स भी कैप्चर हो सके साथ ही साथ, वरना आप मैच्योरिटी के बाद सीधा डायरेक्ट डिक्लाइन हो गए तो फिर आपके तो बचेगा ही नहीं कुछ भी. तो इसलिए इसी मोमेंट पे यू हैव टू स्टार्ट टारगेटिंग न्यू मार्केट सेगमेंट. न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाओ ताकि आपकी इस एरिया में सिर्फ अगर आप नॉर्थ में सर्व कर रहे थे तो आप साउथ वेस्ट उसमें भी जाओ, ईस्ट में भी जाओ. तो ऐसे करके अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाओ. ऐसे इन्होंने सारी बताई है. ठीक है. उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज में आते हैं. मैच्योरिटी स्टेज में भी 3 फेसेस रहते हैं: ग्रोथ मैच्योरिटी, स्टेबल मैच्योरिटी एंड डिकेइंग मैच्योरिटी. अब जो ये मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन है. बताते हैं एक सेकेंड. ये देखो, ये मैच्योरिटी. ये सिर्फ इतने पोर्शन को देखना आप, जो मैं अभी येलो से हाईलाइट करूँगी. ये वाला पोर्शन देखना है अपने अंदर. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक आपका था ग्रोथ मैच्योरिटी. ठीक है. ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद आया स्टेबल मैच्योरिटी. स्टेबल मैच्योरिटी ये रहा कि ओके सिचुएशन में है. ठीक है. उसके बाद आया हमारा डिकेइंग मैच्योरिटी. डिकेइंग मैच्योरिटी है, ये देखो. तो ये 3 स्टेजेस रहती है मैच्योरिटी स्टेज में भी: ग्रोथ, स्टेबल, डिकेइंग. तो मैच्योरिटी की 3 स्टेजेस रहती है. ठीक है. रेट सेल्स ग्रोथ स्टार्ट टू डिक्लाइन बट द एब्सेंस ऑफ न्यू. ग्रोथ मैच्योरिटी क्यों कह रहे हैं इसको आप,
वो समझो कि मेच्योरिटी वाली स्टेज में तो है दैट द सेल्स आर इंक्रीजिंग और दे आर स्टेबल बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अगर 100 से 200 हो रही थी तो अब 100 से 150 हो रही है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, दैट इज द ग्रोथ मैच्योरिटी। ऐसे स्टेबल और डिकेइंग में कम हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं इसके? During the first part of this period, sales continue to increase but at a decreasing rate. While sales are leveling off, the profits of the manufacturer and the retailer starts to decline. अब क्योंकि डिक्रीजिंग रेट पे होते हैं तो प्रॉफिट्स स्टार्ट टू डिक्लाइन, किसके? सबके, मैन्युफैक्चरर के भी, रिटेलर के भी। द मार्जिनल प्रोड्यूसर्स आर फोर्स टू ड्रॉप आउट ऑफ द मार्केट, द प्राइस कॉम्पिटिशन बिकम्स इंक्रीजिंगली स्वेयर। प्राइस, क्योंकि न्यू पीपल आगे होते हैं, competitors आगे होते हैं। The producer assumes that a greater share of total promotional effort in the struggle to retain the dealers. Other firms increase their research and development budget to find new models or the better version of the product. Then what are the marketing strategies? इसमें कौन कौन सी marketing strategies you can use? पहले ही मार्केटिंग मॉडिफिकेशन कि द प्रोडक्ट यू, जो भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग, यू नीड द मॉडिफिकेशन इन दैट ऑल्सो। Here the product manager looks for opportunities to find new buyers for the product. There are many possibilities, मतलब new segments को target करना in short. Another possibility is that he may look for various ways to stimulate and increase usage among the present. तो ये अलग अलग तरीक़ों से अपनी सेल indirectly बढ़ाना, दैट इज़ मार्केटिंग इन मॉडिफिकेशन। देन प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, इसमें प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, ना कि मार्केटिंग एफर्ट्स लगाएंगे। प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करेंगे? क्वालिटी इंप्रूव करके, फीचर्स एडिशनल दे के, स्टाइल इंप्रूव करके, एस्थेटिक्स इंप्रूव करके एंड ऑल। मार्केटिंग मिक्स की मॉडिफिकेशन क्या है? इट शुड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटिंग सेल्स थ्रू change one or more elements of marketing mix. One possibility is that to cut the price in order to attract the new tries और competitors का कस्टमर, कि competitor का प्रोडक्ट कस्टमर्स ना यूज़ करें और हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें। देन लास्ट स्टेज ऑफ द PLC इज द डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन इज द पीरियड वेयर द सेल्स कॉन्टिन्यूज टू डिक्लाइन स्ट्रांगली, मतलब नेगेटिव में चल जाती है। एंड द प्रॉफिट होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट एट अ 0 पॉइंट। जो मैंने ऊपर आपको वो दिखाई है ना, उसमें देखना, प्रॉफिट वाले कर्व को देखना। एक सेकेंड, PLC का कोई भी क्वेश्चन आया ना, आप ये डायग्राम तो बना ही आना। ये देखो, अभी हम सेल्स को स्टडी कर रहे थे, अब प्रॉफिट पे आते हैं। पहले आपके प्रॉफिट नेगेटिव होते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ स्टेज में एकदम से पीक होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी में आपके गिरने लग जाते हैं प्रॉफिट, ऑलमोस्ट टचिंग 0 पॉइंट। एंड डिक्लाइन स्टेज में 0 से थोड़े से ऊपर होते हैं, क्योंकि आप न्यू सेगमेंट्स में क्योंकि एंटर होते तो थोड़े से ऊपर होते हैं, वरना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। तो डिक्लाइन स्टेज हमारी ये कहती है। Most producer firms and brands gradually enter the new sustained sales decline, and decline may be slow or rapid. So company faces a number of tasks and decisions to ensure that effective handling or its aging product. क्या क्या वो कर सकती है? सबसे पहले तो अपने वीक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, जिसके बेसिस पर वो अपने डिसीजन बनाएगी कि इसको ऐसे ही छोड़ देना है या उसको मॉडिफाई करना है या फिर ड्रॉप कर देना प्रोडक्ट। तो ये 3 डिसीजंस लेती है जो हम CVP में भी पढ़ते हैं, ठीक है। देन डिटरमाइन दी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जो वीक प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको 3 स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर वो 3 स्ट्रैटेजीज चूज़ कर सकती है, कोई सी भी एक उनमें से। कॉन्टिन्यूस स्ट्रैटेजी, मतलब पास्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखना। नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी, अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हार्वेस्टिंग इज रिड्यूस इट्स एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज दी करंट प्रॉफिट्स। उसके बाद नीश मार्केटिंग कर सकती है, प्राइस एडजस्टमेंट कर सकती है, बंडल ऑफरिंग कर सकती है, मतलब किसी के साथ देना, एंड प्रमोशन क्लियरिंग सेल लगा के कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द ड्रॉप डिसीजन। ड्रॉप डिसीजन मतलब उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू ही नहीं करना, दैट इज इफ इट इज लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। देन फर्स्ट इट मीन्स डिसाइड दैट वेदर टू सेल और ट्रांसफर द प्रोडक्ट to someone else before dropping it completely. Second, it has to decide whether the product should be dropped quickly or slowly. Third is had to decide whether the product of parts, that is inventory or services, to be maintained or to cover with existing product units. यूजफुलनेस क्या होती है प्रोडक्ट PLC की? बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है ज़रूरी? सबसे पहले एज अ प्लानिंग टूल यूज़ करते हैं, एज अ कंट्रोल टूल यूज़ करते हैं, एंड फोरकास्टिंग टूल, तीनों के लिए यूज़ होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजी प्लानिंग में भी यूज़ होता है,
जो ऊपर प्लानिंग टूल में ही आ गया। रिसोर्स एलोकेशन के टाइम यूज़ होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम यूज़ होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। ऊपर ही कवर हो गया बट चलो अलग से लिख दिया। क्रिटिसिज्म क्या होता है पीएलसी का? पीएलसी सिर्फ और सिर्फ ना प्रोडक्ट पे फोकस्ड होता है, इट डजंट फोकस ऑन दी मार्केट। मतलब इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड पिक्चर देता है ज़्यादा देन दी मार्केट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड आपने ले ली बट आपको मार्केट का ही नहीं आता पता, तो अकेला पीएलसी भी कुछ नहीं कर सकता ना। सो मार्केट को अंडरस्टैंड करना अलॉन्ग विद पीएलसी इज मोर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो विद दिस आवर थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो ओवर एंड यूनिट 3 इज ऑल्सो ओवर। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में हमने 4 चैप्टर्स करने हैं। प्राइसिंग 206, ये हो गया हमारा। प्राइसिंग करनी है हमने, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के होलसेलिंग रिटेलिंग करनी है एंड लॉजिस्टिक्स करने हैं। जिस आपके यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइसिंग इज बेसिकली what price we are charging for the product. Of course, price is basically the amount of money or the other item with which utility needed to acquire the product. कॉटलर की डेफिनेशन जो आपने याद करनी है, इट इज़ द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू एंड अदर एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड कॉस्ट। बाकी जो भी हम देख रहे थे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड था, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है बट मैन्युफैक्चर करके हमने रखना थोड़ी ना, उसको बेचेंगे, बेचने के बाद हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? उसका प्राइस। प्राइस जो कॉस्ट होगी टू द कंज्यूमर, दैट इज द रेवेन्यू पोर्शन फॉर दी सप्लायर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट डिटरमाइंस द फर्म सक्सेस। जैसा आप प्राइस सेट कर रहे हो, जैसा आप प्राइस कोट कर रहे हो, उसके डिपेंड करता है कि आपके कंज्यूमर कितनी उसको फिट बैठ रहे हैं पर कंज्यूमर्स के लिए, राइट। तो वो कंज्यूमर्स के लिए जितना बढ़िया फिट बैठेगा, दैट डिटरमाइंस द फर्म सक्सेस कि आपने प्रोडक्ट बढ़िया डेवलप किया, ठीक है। देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजिशन, कि अगर कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट 100 में बेच रहा था और आपने 90 में इंट्रोड्यूस कर दिया, मेंटेनिंग योर कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपको मिल जाती है इन द मार्केट। एंड बाकी अब क्योंकि आप 90 में ऑफर कर रहे हो तो ऑफकोर्स कंज्यूमर विल बाई योर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट 100 में दे रहा है, ठीक है। सो इससे कॉम्पिटिटिव पोजीशन बिल्ड होता है और आपका मार्केट शेयर भी बढ़ता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस फर्म्स मार्केटिंग प्रोग्रेस. The overall process of marketing managers is greatly affected by price of the product. In product planning, we seek to improve the quality by adding the differentiating feature. This decision can be implemented only if the market will accept the price high enough to cover the cost and of these changes. देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर ठीक है एक हद तक देखता है कि मेरी वांट सेटिस्फाइंग पावर है उस प्रोडक्ट में या नहीं, बट सेकेंडरीली वो भी ये देखता है कि उसका प्राइस फिट हो रहा है उसके पॉकेट एक्सपेंस से या नहीं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर एज वेल. इट ऑल्सो हेल्प द कंज्यूमर टू हैव द गाइडेंस इन द बाइंग डिसीजन कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है वो अपनी परचेजिंग पावर का या नहीं कर रहा. देन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म. कैसे? इट इज़ क्रूशल फॉर द फर्म बिकॉज इट इन्फ्लुएंस बाकी एक्सपेंसिस वो कैसे करेगी जब उसको रेवेन्यू जैसा आएगा. सो दैट द प्राइस इज नॉट ओनली डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द फर्म, इट इज़ द हब अराउंड विच द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द फर्म रिवॉल्व. ठीक है. सो फैक्टर्स क्या होने चाहिए जब आप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइड कर रहे हो? फर्स्ट इज़ द इंटरनल फैक्टर एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो इंटरनल फैक्टर में आता है कॉस्ट क्या है आपकी, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करके. आप पब्लिक इमेज कैसी मेंटेन करना चाहते हो कि आप मतलब पेनिट्रेशन पॉलिसी यूज़ कर रहे हो या फिर आप स्कीमिंग यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी प्राइस डिसाइड होगा, उस हिसाब से ही आपकी पब्लिक इमेज भी डिसाइड होगी. तो आप अगर आप बैक साइकोलॉजी लगाओगे, रिवर्स साइकोलॉजी, तो वैसे भी आपका प्राइस डिसाइड होगा. ठीक है. देन थर्ड इज़ द प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर्स, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस हिसाब से यू विल डिसाइड कि आपका प्राइस क्या होगा. देन फोर्थ इज द प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. आपकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी जैसे कि 999, 4999, ऐसे जो 999 वाले होते हैं ये साइकोलॉजी से खेलते हैं. प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होती है उनकी कि 4999 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5000. ठीक है. तो आपको लगता है 4000 का प्रोडक्ट है बट एक्चुअली आर पेइंग 5000 ओनली. तो वो साइकोलॉजिकली वर्क करता है. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. तो उस हिसाब से भी आप प्राइस सेट करोगे. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है, देन आपके बायर का बिहेवियर क्या है,
प्राइस को लेके प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है। देन आपका इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन क्या है, तो ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आपके प्राइस क्या होना चाहिए। ये आपने जो एग्जाम में लिखना है उसके रिलेटेड ये रहा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी, ठीक है। ये देखो स्कीमिंग पॉलिसी एंड पेनिट्रेशन पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, प्राइस इलास्टिसिटी एंड ऑल, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर प्राइस, बाइंग बिहेवियर, इकोनॉमिक एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले टारगेट रिटर्न। The pricing objective of many firm is to achieve target ROI. Target ROI pricing requires price to set in such a way that anticipated total sales revenue exceeds total cost. तो ताकि आपके प्रॉफिट्स मेंटेन हो सके और आपकी ROI भी मेंटेन हो सके और टारगेट आपके कंप्लीट हो सके। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एक तरह से ROI मेंटेन करना भी है। देन आपका मार्केट शेयर को कैप्चर करना इज ऑल्सो देयर। देन उसके बाद मीटिंग और प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को मीट करना या उसको कॉम्पिटिशन को बीट करना। मीट और बीट द कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वाइल यू आर सेटिंग अप द प्राइसिंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो देयर, जो कि होता ही है। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन, मतलब ऐसा प्राइस सेट करें कि आपका एक लॉन्ग टर्म तक वो प्राइस पे आप वर्क कर सको, कि आप बाद में अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़े भी देन योर सेल्स वॉल्यूम कैन टिकेटर टू दैट प्राइस ऑल्सो एंड आपका कोई इतना इफेक्ट ना पड़े इन द लॉन्ग रन ऑल्सो, ठीक है। देन प्राइसिंग पॉलिसीज एंड डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस क्या होते हैं। Pricing policy is more specific than the objectives and deal with the situations in the foreseeable future. Future की बारे में बात करते हैं। Future the policies constitutes general framework that within which the pricing decisions are made. Firm does not follow a single price policy, rather it needs a bundle of policies that to arrive at the pricing decision. कौन कौन सी policies वो use करती है। सबसे पहले it's cost oriented, मतलब cost को base रख के if you are doing the you're setting up the price. Second is your competition oriented, competition को base रख के you're setting up the price of your product. Third is your uniformity of prices in different buyers and price differential. Is it? Yes, uniformity of prices to different buyers and then price differentials. फिफ्थ इज योर जियोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी, उस बेसिस पर यू डिसाइड द प्राइस। अभी एक एक करके बताऊंगी, टेंशन मत लो। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, लीडरशिप प्राइसिंग एंड प्रेस्टीज पॉलिसी प्राइसिंग, डुअल प्राइसिंग, गारंटी अगेंस्ट प्राइस डिक्लाइन। बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, 12 पॉलिसीज है। हम 3-4 करेंगे अच्छे से, बाकी तब तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। कॉस्ट ओरिएंटेड देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कॉस्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को भी कॉस्ट ओरिएंटेड बोलते हैं कि कॉस्ट प्लस आप जितना भी मार्जिन रख लो दैट इज योर कॉस्ट प्राइसिंग। अब इसमें भी कौन कौन से आते हैं, 2 प्राइसिंग ऑल्टरनेटिव्स होती है। एक तो फुल कॉस्ट प्राइसिंग, दूसरी इज कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट को जब आप टोटल कॉस्ट में टोटल उसमें से सेल में से माइनस करते हो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यू आर सेटिंग अप दी योर प्राइस। तो फुल कॉस्ट में क्या आता है, अंडर फुल कॉस्ट प्राइसिंग द प्राइसेस मे बी सेट मस्ट कवर टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो मार्कअप प्राइसिंग प्लस एंड कॉस्ट ऑफ प्लस प्राइसिंग और मोस्ट एलिमेंट्री एग्जाम्पल ऑफ सच प्रैक्टिसेस, जिसमें आप क्या करते हैं, देखो कॉस्ट प्लस प्राइस कैसे सेट होता है, कॉस्ट इंटू डिजायर्ड मार्कअप सेलिंग प्राइस, दिस इज योर कॉस्ट प्लस प्राइस। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। अंडर कंट्रीब्यूशन फर्म सेट्स फुल कॉस्ट बेसिस wherever possible but will price under certain condition at any level above the incremental cost. Incremental cost is variable cost. In other words, the price is charged enough to cover all the incremental cost and make contribution to the fixed cost. That firm will go up. The assumption is that the incremental consists of variable cost and proposed volume does not add to the fixed cost. ठीक है। Third is break even pricing. Break even मतलब cost is equal to सेलिंग वैल्यू। सो आपका इसमें प्रॉफिट कंपोनेंट नहीं आता, प्रॉफिट इज 0। So situation where income and total cost become equal is called break-even pricing. This is an important method used to determine the price of the product. This analysis relation between cost and quantity is studied. For analyzing break-even cost can be divided into 2 categories: fixed and variable cost. Calculating break-even point, total fixed cost and variable cost remain same per unit. Break-even point is fixed cost is equal to the वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये देखो इस एरिया में आप करोगे तो लॉस बियर करोगे, ग्रीन एरिया में करोगे तो प्रॉफिट बियर करोगे, बिकॉज रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट। और इक्वल जहाँ पर होंगे दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है।
हमने पहले भी बनाई हुई है डायग्राम, वही वाली है ये, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइस की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स आपके क्या प्राइस सेट करें उस बेस पर आप अपना प्राइस सेट करो, दैट इज योर कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोइंग रेट प्राइसिंग, दैट इज जो कॉम्पिटिटर ने रखा वही आप रख दो। देन प्राइसिंग अबव द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन ने जितना रखा है उनसे ज़्यादा प्राइस रखना, जो कि बहुत कम होता है अगर यू आर एंटरिंग इन टू मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। देन प्राइसिंग बिलो कॉम्पिटिशन, जिससे आपकी अगर आपकी कॉस्ट मैनेज हो रही है, कीपिंग इट मोर देन कॉस्ट बट लेस देन कॉम्पिटिटर्स के प्राइस, इट्स ओके, बट अदरवाइज you will have a loss over your contribution. Then seal bid pricing is जहाँ पर आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हो कि वो कितना ऑफर कर रहे हैं। व्हेन द फर्म कम्पीट फॉर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स, मतलब बोली लगाना, द बिड ऑफर बाय द फर्म और द जॉब इज बेसिकली प्राइमरी ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ कॉम्पिटिटिव प्राइस विल प्राइस रादर देन ऑन द रिजिड रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स ऑन कॉस्ट एंड द डिमांड, कॉस्ट को ध्यान नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सारे हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ डिफरेंट बायर्स, देन प्राइस डिफरेंशियल, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, क्वांटिटी डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स, प्रमोशनल डिस्काउंट्स, सारे हमने पढ़े हुए हैं, वही हैं। देन सीजनल डिस्काउंट्स, जोग्राफिकल के बेसिस पर जगह के हिसाब से रखना, फ्री ऑन बोर्ड, यूनिफॉर्म डिलीवरिंग प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग एंड ऑल, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, लीडरशिप, डुअल गारंटी, प्रमोशनल डिवाइस के हिसाब से, रीसेल प्राइस के हिसाब से एंड ऑल, ठीक है। बहुत सारे हैं, 5-6 कर लेना बहुत है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, पहले मार्केटिंग एंटरिंग की स्ट्रैटेजी, उसमें हमने देखी थी स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। पीएलसी की स्टेज पे इफ़ यू आर देयर तो उस हिसाब से इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। प्राइस चेंज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे, साइकोलॉजी में ऑड इवन रखोगे, कस्टमरी, प्रेस्टीज, डिस्काउंट, प्रमोशनल, तो ये होता है। देखो स्किमिंग में हमने देख लिया ना, स्किम द क्रीम प्राइसिंग, स्किमिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको भी बताया। हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस, जिसकी वजह से आप पहले ही सारा प्रॉफिट इकट्ठा कर लोगे। हाई इनिशियल प्राइस ऑफन जनरेट हाई सेल्स वैल्यू एंड प्रॉफिट्स दैन लो इनिशियल प्राइस। मैन्युफैक्चर कैन सेट हाई इनिशियल प्राइस टू कीप द डिमांड विद इन लिमिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग हेज अगेंस्ट द पॉसिबल मार्केट मिस्टेक इन द प्राइस सेटिंग, ठीक है। पेनिट्रेशन हमने देख लिया, पहले हम बिल्कुल लो प्राइस रखेंगे, धीरे धीरे करके भी इंक्रीज द प्राइस। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज हाईली इलास्टिक, तो इस करके हम प्राइस पहले बहुत कम रखते हैं। ये देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 assumptions, फर्स्ट देयर इज लार्ज पोटेंशियल मार्केट एंड सेकंड देयर आर पोटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट द लार्ज स्केल। So penetration pricing strategy often retailing where the sellers set their price still lower, keeping in mind that those charged with competitors. Then product is expected to face strong competition soon after its introduction, इसलिए बहुत कम रखते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होती है कि ओवरली एक्सेसिव प्राइस चार्ज करना फॉर दी प्रोडक्ट। could believe that products price is very high then it is the quality will remain acceptable and वो बहुत अच्छा होगा प्रोडक्ट, कईयों के माइंड में होता है, तो उस चीज़ को रखने के लिए। देन इकोनॉमिक प्राइसिंग, जैसे हम उसमें देखते हैं अपनी एयरलाइन की, उसमें बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास, वैसे बेसिक। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो हमने देखा था 199, 499, दैट इज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफर करे उस हिसाब से प्राइस रखना, ठीक है। विद दिस आवर प्राइसिंग चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। देन कम सेकेंड चैप्टर, दैट इज आवर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ मच टाइम इट इज देयर, ओनली एन आवर, ठीक है। 45 minutes और एन आवर अगेन, इतने में विल कवर विद द सिलेबस, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिडलमैन, देन मिडलमैन के फंक्शन क्या होते हैं, और अगर मिडलमैन को हम हटा देते हैं तो उससे क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, ठीक है। 4 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो वही आपको पता होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, कि यू हैव प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बट आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो वो आप कैसे पहुंचाओगे, उसके चैनल्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो उसमें पहले आता है 0 लेवल, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, दैट इज़ द डायरेक्ट चैनल, ठीक है। 1 लेवल मतलब रिटेलर इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज़ द इनडायरेक्ट चैनल, बाकी सारे इनडायरेक्ट ही हैं क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं पहुंचा रहे हो। 2 लेवल में होलसेलर और रिटेलर दोनों आ जाते हैं। 3 लेवल में एजेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया, ये पहले भी आया था, ठीक है।
इंपॉर्टेंस क्या होती है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की? सबसे पहले आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका परचेज कर रहा है तो उसको उसकी डिलीवरी करना इज़ योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उसकी यूटिलिटी क्रिएट करके दे रहे हो। कॉस्ट में इंक्लूड हो रहा है, इट अफेक्ट्स अदर मार्केटिंग डिसीजंस ऑल्सो, तो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट बनता है। देन इट डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑल्सो इट परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शन। कैसे? इट पहले तो एक्सचेंज प्रोसेस करता है, प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। इनेबल्स द प्रोड्यूसर एडजस्ट डिस्क्रिपेंसीज असॉर्टमेंट वाया प्रोसेस कॉल्ड सॉर्टिंग करता है। एंड थर्डली इट स्टैंडर्डाइज द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, दस ईच ट्रांजैक्शन इज नॉट नेगोशिएटेड सेपरेटली, रादर ट्रांजैक्शंस आर स्टैंडर्डाइज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट्स अ वेराइटीज। ठीक है, इट एंटेल्स फॉर्म्स कमिटमेंट एंड फैसिलिटेट्स द कंट्रोल। अब आपने कौन सा चैनल चूज करना है वो आप कैसे देखोगे? हाउ यू विल चूज द चैनल? द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं? सबसे पहले यू विल सी कि आपकी मार्केट कौन सी है, मार्केट कंसिडरेशन, कि आपकी कंज्यूमर मार्केट में डील कर रहे हो, मार्केट का साइज़ क्या है, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या है मार्केट का, आप ऑर्डर साइज़ कितना केटर कर रहे हो, देन हाउ व्हाट आर द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो उस बेसिस पर यू विल डिसाइड कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होना चाहिए। देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट कंसिडरेशन, कैसा प्रोडक्ट है, पेरिशेबल है कि नहीं है, साइज़ उसका बड़ा है छोटा है कैसा है, यूनिट्स कितने आप दे रहे हो, टेक्निकल नेचर है या नहीं, प्रोडक्ट लाइन क्या है उसकी, इस सब पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा टुवर्ड्स द कंज्यूमर। देन कंपनी की कंसिडरेशन खुद की कि एज क्या है, एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड कंपनी में हैव इट्स ओन मार्केटिंग नेटवर्क, बट जो अगर न्यू होएगी तो उसको किसी को हायर करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को। देन व्हाट इज़ द साइज ऑफ द कंपनी, रिसोर्सेज क्या है कंपनी के, कंपनी का चैनल पे कंट्रोल रखना है या नहीं रखना है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर आपको सर्विस दे रहा है तो आप डायरेक्टली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दैट इज़ देयर। देन मिडल मैन कंसिडरेशन, आप मिडल मैन को इन्वॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मिडल मैन अवेलेबल है या नहीं है, एटीट्यूड क्या है मिडल मैन का प्रोवाइड करने का, तो दैट इज़ ऑल। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैनल यूज़ करोगे। सो इट इज़ क्लियर दैट मैन्युफैक्चरर और सेलर is required to consider variety of factors while deciding how he will get the goods most economically and efficiently to the hands of the consumers. There is also no readily available packages of guidelines which could provide you ready-made answer. So जितने भी आपको समझ आए प्रोडक्ट पॉइंट्स आप वो लिख देना। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ चैनल फॉर न्यू प्रोडक्ट अगर कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसको कैसे वो करोगे? So the channel selected must be appropriate for two purposes. कौन से? For informing the potential buyer that the new product exists. Secondly, to make him realize that he needs that product to satisfy his wants. तो ये दो पर्पस फुलफिल होने चाहिए, ऐसा चैनल चूज करो। Then aggressive selling is needed to introducing new product for the new company entering the market. So choice of channel becomes very limited. The wholesaler cannot undertake aggressive selling. So manufacturer has no choice but to develop his own sales force to call direct selling करना. So existing channel may not be eager or willing to take up on the unknown product. So here the company will have just force the user away to channel in which they will accept the product. तो ये consumer के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि मिडल मैन क्या होता है? मिडल मैन इज द थर्ड पार्टी दैट गेट्स इन्वॉल्व विद इन दी सेलिंग प्रोसीजर और द मार्केटिंग प्रोसीजर ऑफ द प्रोड्यूसर एंड दी what consumer. तो दैट इज द मिडल मैन। कौन कैसे मिडल मैन हो सकते हैं? या तो एजेंट हो सकता है या मर्चेंट हो सकता है। ठीक है, एजेंट में कौन कौन आते हैं? ब्रोकर्स आते हैं, कमीशन एजेंट्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं और ऑप्शनियर्स आते हैं। और मर्चेंट्स की बात करें तो होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। होलसेलर्स में भी कई प्योर होलसेलर होते हैं, रिटेल होलसेलर्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। रिटेलर्स में होते हैं स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में आइटनरेंट होते हैं और फिक्स शॉप वाले होते हैं। ये सारा हमने ना, मुझे पता है हमने 12th में पढ़ा हुआ है एंड यू मस्ट ऑल बी नोइंग अबाउट दिस मिडल मैन का कॉन्सेप्ट, सारे हमने पढ़े हुए हैं 12th, मुझे अच्छे से याद है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें क्या क्या कंसिडर होगा। ब्रोकर्स कौन होते हैं, कमीशन एजेंट्स कौन होते हैं, फैक्टर्स कौन होते हैं, ऑप्शनियर्स कौन होते हैं। ये आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, एक एक लाइन है इनकी, स्क्रीनशॉट लेके जाए तो। बाकी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। दैट एजेंट मिडल मैन आल्सो नोन एज मर्केंटाइल मिडल मैन, आल्सो नोन फॉर फंक्शनल मिडल मैन,
बहुत सारे नाम होते हैं इसके। देन उसमें क्या क्या कवर्ड होता है, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, ऑक्शनियर्स एंड फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन होते हैं, एजेंट, मिडलमैन हु मेक्स मनी बाय सेलिंग थिंग्स, दे कैन जस्ट सेट अप देयर ओन प्राइस फॉर द प्रोडक्ट दे आर सेलिंग अंडर हिज ओन नेम, ठीक है। मर्चेंट मिडलमैन कौन होते हैं, उसमें कौन कौन आते हैं, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। होलसेलर कौन होते हैं, दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर। रिटेलर होते हैं जो होलसेलर और कस्टमर के बीच में करते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था। फंक्शंस क्या रहते हैं मिडिल मैन के, सो सबसे पहले तो इट प्रोवाइड मार्केटिंग असिस्टेंस, इट रिड्यूस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट रिलीव द प्रोड्यूसर को बांटने की चिंता रहती है, वो सिर्फ प्रोड्यूस करने पे वो फोकस करेगा। इट ब्रेक द बल्क, थोड़े थोड़े बिग लॉट्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में सॉर्ट कर देता है ताकि इजीली कंज्यूमर तक पहुंच सके, अलग अलग जगह तक। असॉर्टमेंट ऑफ डिस्क्रिमेंसी हट जाती है। देन मैचिंग सप्लाई विद डिमांड, जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है वहाँ प्रोवाइड करना, डिमांड जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ सप्लाई देना, जहाँ डिमांड कम है वहाँ कम प्रोवाइड करना, वैसे उसको डिवाइड करने में मिडिलमैन बहुत काम होता है, मिडिलमैन बहुत काम करता है। देन स्टेबलाइजिंग द प्राइस एंड द प्रमोशन पार्ट, ठीक है। देन एलिमिनेशन द मिडिलमैन, अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा, तो एनॉर्मस नंबर ऑफ मिडिलमैन इंटरपोजिंग, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है एक तरह से, वो जो भी चार्जेस या कमीशन मिडिलमैन ले रहा होता है वो कॉस्ट में ऐड होते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये हो जाता है, इसलिए एलिमिनेट कर देना इज़ ओके। बट सुपरफ्लुअस सर्विस देता है, कई मिडिलमैन सिर्फ बांटने के लिए, प्रमोशन को कैटर करने के लिए दे जस्ट मतलब झूठ बोल देते हैं कंज्यूमर को, ये भी करता है प्रोडक्ट, ये इसलिए अच्छा है उसलिए अच्छा है, मतलब फालतू की बात कर देता है, तो इसलिए मिडलमैन को एलिमिनेट कर देना चाहिए। एब्सेंस ऑफ रिस्क बेयरिंग, वो रिस्क बेयर नहीं करता, सारा रिस्क होता है इनडायरेक्टली उसके ऊपर ही है, प्रोड्यूसर के ऊपर, अगर नहीं बिका तो वो प्रोड्यूसर का नुकसान है ना कि मिडलमैन का। मैन्युफैक्चरर्स डिसकंटेंट, अगर नुकसान हो गया तो मैन्युफैक्चरर भी दुखी हो जाएगा। देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता कंज्यूमर से, उसको समझ नहीं आता कि हाँ क्या प्रोड्यूस करना क्या नहीं। देन डिससर्विस टू द मार्केट, बट ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो बोलते हैं एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, arguments against elimination, that they perform useful marketing functions like assembling, disposal, warehousing and transportation, they relieve the manufacturer, जो हमने ऊपर फीचर्स में देखा वही है, promote specialization, facilitate distribution and all, ठीक है। तो in short, now existence of middleman is not willingly acceptable either by manufacturer or the consumer, however it is not possible to eliminate middleman in all the areas. So elimination of middleman does not mean elimination of functions performed by middleman. The various marketing functions performed by channels to performed by someone, if not middleman, by manufacturer or the customer himself. So कुछ लेवल तक मिडलमैन होने चाहिए, कुछ तक नहीं होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव इज टू परफॉर्म दिस फंक्शन एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, ठीक है। So with this this chapter is also over, and third chapter of unit 4 is डिस्ट्रीब्यूशन में होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। ये छोटा सा ही है, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स क्या होते हैं, बस छोटू सही है, फटफट कर लेंगे हम। इसके बाद हमारा एक रह गया लॉजिस्टिक्स वाला, और फिर यूनिट 5 के 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स रह के देन आर्ट सिलेबस विल बी ओवर, ठीक है। सो होलसेलिंग एंड रिटेलिंग की बात करें तो ये क्या होते हैं, होलसेलर्स कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर से सामान लेके आते हैं बल्क में, ताकि वो रिटेलर्स को सेल कर सके इन स्मॉल क्वांटिटीज़, एंड फिर वो रिटेलर्स आगे कंज्यूमर्स को अलग अलग एरियाज तक सप्लाई कर सके। सो होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं होलसेलर्स के, दे परचेज कमोडिटीज़ फ्रॉम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली, दे परचेज इन मैसिव अमाउंट्स एंड सेल इन स्मॉलर क्वान्टिटीज़, और क्योंकि ये मैसिव अमाउंट में परचेज करते हैं तो इनको कॉस्ट कम पड़ती है, और स्मॉलर क्वांटिटीज़ में क्योंकि ये सेल करते हैं तो वो हायर कॉस्ट बेच सकते हैं, जो बीच वाला होता है एक तरह से वो इनका प्रॉफिट होता है। सो दे सेल वेरियस वेरिएशंस ऑफ सेम प्रोडक्ट लाइन, दे हायर नंबर ऑफ एजेंट्स एंड पर्सोनल टू हेल्प द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, टिपिकली एक्सटेंड क्रेडिट टू द रिटेलर्स ऑल्सो। तो ये सारे इनके फीचर्स रहते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, एक तो प्योर होलसेलर्स, रिटेल होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर्स। प्योर होलसेलर मतलब जो सारा प्रॉपर होलसेलर का काम कर रहे हैं, मतलब he is engaged in only buying and selling of goods in large lots and does not engage himself in activities of manufacturing or retailing or other wholesalers do। मतलब कई होलसेलर ऐसे होते हैं वो बल्क में ले जाते हैं फिर खुद ही बेचते हैं, दैट इज रिटेल वन। बट होलसेलर, प्योर होलसेलर इज जो बल्क में खरीदते हैं और बल्क में बेचते भी हैं, तो दैट इज योर
प्योर होलसेलर, मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चर भी खुद ही कर रहे हैं और आगे बेच भी खुद ही रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चर और होलसेलर। फंक्शंस क्या रहते हैं? बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, बेसिक ही है ये तो सारे। सर्विसेज ऑफर्ड, चलो ये करते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। सर्विस ऑफर्ड बाय होलसेलर। सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर? इसमें 3 कैटेगरी है, देखो। सर्विस प्रोवाइडेड टू होलसेलर्स, टू मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर टू रिटेलर्स, एंड थर्ड वन इज सर्विसेज होलसेलर टू द सोसाइटी। तो ये 3 पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है, अच्छा भी है कॉन्सेप्ट कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले दे प्लेस एडवांस ओवर ऑर्डर्स टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर फोरकास्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि होलसेलर्स को रिटेलर से पता चला होता है कि ऐसी ऐसी डिमांड मार्केट में है, तो वो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स को बताता है कि वो उस हिसाब से प्रोडक्शन करे ताकि सेल्स की क्वांटिटी मीट हो सके। तो मैन्युफैक्चरर उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन प्लान करता है, उसके हिसाब से फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी मिलता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू गोडाउन्स एंड अल्टीमेटली टू रिटेलर्स, conduct advertising and sales promotion. They offer finance assistance in the form of cash payments for the goods. They also play a critical role in determining the final product prices. ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या कॉस्ट पड़ेगी वो भी कई बार होलसेलर्स प्रोपोज करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, उसके बाद रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? इट फंक्शन एज अ रिटेल्स का परचेजिंग एजेंट, सेविंग देम फ्रॉम बॉदरिंग ऑफ लोकेटिंग एंड असेंबलिंग गुड्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स। दे हेल्प मर्चेंट्स विद प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द शॉप्स that operate with little working capital. They may also separate working various grades of product based on quality and bundle of goods into little lots for the retailers. ठीक है, देन होलसेलर सोसाइटी को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? They educate public about the new products created by the sub-producer. In other words, wholesalers, by organizing supply from diverse manufacturers, arrange to make them items available to the customer through means of retailers. Through means of retailers, the wholesaler gain knowledge of the public interest and fashions, and उसके basis पे they produce. They also know the wishes, liking, fashions of the masses by doing the market research, and they consequently advise manufacturer to do that. Because wholesaler fosters specialization by purchasing in bulk, society benefits from good products at reduced prices. Wholesaler attempt to preserve product price stability by reaching an equilibrium between demand and supply. ठीक है, sorry. Then the second and the last topic, that is the retailers. Retailers कौन होते हैं? जो परचेज करते हैं होलसेलर से। दे एक्ट एज द मिडल मैन बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को बेसिकली जो डायरेक्टली लिंक में होते हैं, दैट आर द रिटेलर्स। इज द मिडल मैन हु सप्लाइज हु सेल्स प्राइमरली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर नॉन बिजनेस यूज। होलसेलर तो अभी तक रीसेलिंग के लिए यूज परचेज कर था ना, बट रिटेलर्स परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ द कंज्यूमर। सो फंक्शंस क्या रहते हैं रिटेलर्स के? दे बाय एंड असेंबल गुड्स from favor wholesalers and manufacturers with a view to meeting needs of the ultimate consumer. They sell the goods in retail to the ultimate consumer. They transport goods from wholesaler, divide the package and pricing of the goods to purchase from the wholesaler and all. ठीक है, services rendered by retailers. सर्विसेज क्या क्या देते हैं रिटेलर्स? दे एक्ट एज कंज्यूमर्स परचेजिंग एजेंट, दस एंटिसिपेट्स देयर वांट्स, दे परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बल्क ब्रेकिंग टू provide goods in smaller lots. He also offers the facility of selecting goods of different kinds, sizes and colors. He grants credit to the consumers. They bears certain consumers that he gives guarantee for goods he sell. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? They sell in small lots to the ultimate consumer, thereby saving manufacturer and wholesaler from the botheration of contacting a large number of consumers in selling them in small quantities. तो उनकी हेल्प करते हैं। कैसे कैसे काइंड ऑफ रिटेलिंग होती है, कौन से बेसिस पर होती है? सबसे पहले स्केल ऑफ ऑपरेशन के बेस पे स्मॉल और लार्ज, परमानेंस ऑफ बिजनेस के आइटनरेट ऑफ फिक्स एंड मूविंग वाले, एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइन हैंडल्ड, जोग्राफिकल एंड फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो ये देखो, ये इसका चार्ट है ना बढ़िया सारा। रिटेलर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर और लार्ज स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल में आइटनरेट होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स एंड मार्केट ट्रेडर। ये हमने पढ़ा है ना 12th में, आपको याद आ जाएगा नाम पढ़ के।
फिक्स शॉप में कौन कौन होते हैं? स्टॉल होल्डर, सेकंड हैंड गुड सेलर, जेनरिक शॉप, स्पेशलिटी, वन प्राइस, वेंडिंग शॉप, सेल शॉप, ठीक है। लार्ज स्केल में कौन कौन होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल स्टोर शॉप्स, कोऑपरेटिव, मेल ऑर्डर, हायर परचेज, सुपरमार्केट, सुपर स्टोर्स, है ना। तो ये सारे रिटेलर्स के टाइप है, ये आप इधर से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे अभी लार्ज स्केल वाले ही चल रहे हैं, इनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दिए हुए हैं, पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। ये डिफरेंस भी कर लेना, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल मल्टीपल स्टोर्स, देन कोऑपरेटिव स्टोर्स, मेल ऑर्डर। पूरे चैप्टर में इसके टाइप्स ही हैं बस, ये देखो, ये है टॉपिक डिफरेंस वाला, सिंपल है बट न्यू ट्रेंड्स पहले देख लेते हैं। न्यू ट्रेंड्स इन रिटेलिंग, क्या क्या न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं? लार्ज स्केल रिटेलिंग बिकम्स क्वाइट पॉपुलर, बोथ मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स बिकेम एफर्ट्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू एलिमिनेट द मिडलमैन। नॉन स्टोर रिटेलिंग इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, जैसे ऑनलाइन आ जाता है। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट मार्केटिंग आर टू बिगेस्ट डिजिटल ट्रेंड्स इन रिटेल इंडस्ट्री। देन फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट यंग कस्टमर्स, ठीक है। डिफरेंस क्या है? होलसेलर बाय फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, रिटेलर बाय फ्रॉम होलसेलर, यूजुअली सेल ऑन क्रेडिट, दे यूजुअली सेल फॉर कैश। ईजी है, रीड कर लेना। अभी जो आपको एक्सप्लेन किया सारा कुछ उसी को उन्होंने कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। एंड विद दिस आर थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। फोर्थ इज आर लॉजिस्टिक डिसीजंस। लॉजिस्टिक डिसीजन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है? कंपोनेंट्स एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब सप्लाई चेन पे करते हैं, ठीक है। मार्केट लॉजिस्टिक इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है, ठीक है। ये तो वैसे ही बताया, ये देखो यहाँ से कॉटलर की डेफिनेशन। Kotler as planning, implementation, controlling the physical flows of material, final goods and related information from point of origin to the point of consumption to meet the customer requirement at a profit is the definition of marketing logistic. Very important, learn करना ये. In short, it involves getting right product in right quantity to the right consumer to the right place at right time. So logistic is basically the complete process of bringing new raw material and the components part of an organization, then moving to the next stage of the working progress through organization and transporting finished good to the organization, ठीक है। ये सारा कुछ इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। मेजर एलिमेंट्स क्या रहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंस क्यों क्या होती है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की? इट इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस बिकॉज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द फास्ट एंड क्वालिटी सर्विस। एक्सेसिबिलिटी रहती है कंज्यूमर को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। इट क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस की यूटिलिटी। इट बूस्ट द प्रॉफिट, ऑल्सो हेल्प टू अलाइन विद चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट एंड लार्जर मार्केट शेयर कैप्चर होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के? टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस बाय प्रोवाइडिंग productive system of warehousing and quick affordable transportation, ideal amount of inventory is maintained, and then quality service की customer service की quality is also improved. Then selecting mode of transport, उसके हिसाब से ही the product you are ट्रांसपोर्टिंग और द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके हिसाब से यू चूज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटीज़, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम आपका कैसा है वो भी उसके हिसाब से बैठता है। देन फिजिकल हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, देन एस्टेब्लिशिंग द इन्वेंट्री कंट्रोल, रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड स्टेबलाइजिंग द प्राइस। स्टेजेस क्या होते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के? इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है लाना, मतलब जब रॉ मटेरियल आता है टुवर्ड्स द कंपनी फ्रॉम द सप्लायर्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक है जब कंपनी ने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना लिया उसको फिर वो सेलर्स को या फिर जो आपके मिडल मैन से उनको सेंड करते हैं, दैट इज योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। वेरी बेसिक थिंग। इनबाउंड लॉजिस्टिक इज द फ्लो ऑफ सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दिस इज द कीवर्ड। Basically, the raw material needed by firm to the manufacturer in a certain unit. Outbound logistics is basically sending out the products from the company. Flow of the manufacturer to the point of consumption, मतलब point of consumption मतलब रिटेलर्स तक पहुंचाना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। रिवर्स लॉजिस्टिक इज जब रिटर्न आता है, इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स बैक टू द सप्लाई चेन फ्रॉम द एंड यूजर टू द प्रोड्यूसर और द रिटेलर, मतलब रिटर्न आता है, सेल रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, दोनों टाइप ऑफ रिटर्न इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स, ठीक है। देन कंपोनेंट्स क्या होते हैं?
कुछ में नहीं है, 3 चीज़ें ही हैं देखो। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करते हो, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों आ जाते हैं। उसके बाद यू टेक केयर ऑफ दी स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कि आप स्टोरेज वेयर हाउस कहाँ करोगे। उसके बाद यू मूव टूवर्ड्स द इन्वेंट्री कंट्रोल, कि आप इतनी इन्वेंट्री को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं, इन्वेंट्री कंट्रोल होगी। उसके बाद यू मेक इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, कि जो भी उसको है मेंटेन करके रखना। उसके बाद ये अभी एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद विल मूव टूवर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, उसके प्रोसेस होती है पूरी। Consumer orders serve as the foundation for marketing logistics. The customer order should be completed as quickly as possible in order to give the better customer service. In order processing start from receiving order, recording, filling, processing and assembling all orders for further transportation. So whether all the steps of the order processing are carried quickly or before time and with better degree of accuracy, and ultimately consumer satisfaction is received. So इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये देखो। सबसे पहले ऑर्डर प्लेस होता है, फिर वो पिकिंग फॉर इन्वेंट्री। जब आप कोई भी अमेज़ॉन या फिर आपका मिंत्रा या फिर नाइक का ऑर्डर होता है तो आपको पता होता है ना कि आप पहले ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर वो बोलते हैं एट दिस स्टेज। तो वो जो सारा ट्रैकिंग वाला सिस्टम होता है ना, दैट इज़ ओनली द ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रोसेस। तो पहले आपका ऑर्डर प्लेस करोगे आप, फिर आपका ऑर्डर पिक होएगा, इन्वेंट्री पिक होएगी, फिर सॉर्ट होएगी कि आपने कौन सी इन्वेंट्री को कहाँ जाना है, कौन से एरिया में जाना है, एरिया वाइज सॉर्टिंग होगी, कैसे भी बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। देन उसके बाद पैकिंग होएगी, फिर शिपिंग होएगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपने आजकल तो देखा ही होगा ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर्स करते हो तो। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, शिपिंग के बाद होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, रीचिंग टुवर्ड्स द लोएस्ट योर नियरेस्ट पिकिंग स्टेशन एंड ऑल, वो वाला। तो वहाँ जैसे आपने अगर गुजरात से ऑर्डर किया है, गुजरात से वो शिप होएगा आपके दिल्ली तक, तो वो दिल्ली के नियरेस्ट, आपके एरिया के नियरेस्ट पिकिंग सेंटर पे आएगा। तो दैट इज़ वो सारे प्रोसेस में इस ट्रांसपोर्टेशन ये तो हो रही है, तो वही है ट्रांसपोर्टेशन। तो फंक्शन क्या रहता है, इट क्रिएट्स टाइम प्लेस यूटिलिटी, कि कहीं आपको समझ ना आए ना कुछ पॉइंट्स, फंक्शन में यूटिलिटी सारी लिख देना। ठीक है, इट इक्वलाइजेज द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन मेक इट पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एट अ सर्टेन आइडियल लोकेशन एंड मूव टू द प्रोडक्ट टू डिफरेंट एरियाज, thereby equalizing the supply. It stabilizes prices for several commodities, help the growth of industries, and then smooth flow of commodities can held into the consumer's hand. Then means क्या नहीं चाहिए, it depends on the type of product you are transporting। कौन कौन से फैक्टर, सूटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, स्पीड होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब आप फाइनेंस के उसमें वो ना पड़ जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। देन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की बात करें तो एडवांटेजेस देख लो वेयर हाउसिंग के। इसकी वजह से आपके वेयर हाउस हम प्रोडक्ट को स्टोर क्यों करते हैं, बेसिकली प्राइस को मेंटेन करने के लिए, स्मूथ ट्रेडिंग रहे आपकी, मतलब जब आपको चाहिए प्राइस आप उस टाइम ही वेयर हाउस से निकाल के सेल आउट कर दो। देन सेफ्टी रहे, कॉस्ट आपकी रिड्यूस रहे, बल्कि ऐड टू कॉस्ट ही होता है, चलो कोई बात नहीं। बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। कैसे कैसे वेयर हाउस होता है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या होते हैं, एज पर अगर हम लोकेशन के बेसिस पर देखें तो इन प्लांट वेयर हाउस, फील्ड वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेज। अगर हम ओनरशिप के बेस पे देखें तो प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड एंड कोऑपरेटिव। अगर स्पेशली वेयर हाउसेज के बेस पे देखें तो जनरल मर्केंडाइज, स्पेशल वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन एलिवेटर्स। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल होएगी, वेयर हाउस में आपने स्टोर करके रख लिया, फिर आपको कंट्रोल भी तो करना है इन्वेंट्री को, मेंटेन रखना है कि कब इन्वेंट्री आ रही है, जा रही है, क्या उसका इन आउट का प्रोसीजर है, वो सब कुछ। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, टू मेंटेन एडिक्वेट साइज ऑफ इन्वेंट्री टू कंटिन्यू फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन एंड सेल्स एंड टू मेंटेन मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन दी इन्वेंट्री। मतलब एक तरह से इफ यू आर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री और कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री, यू आर ब्लॉकिंग योर फंड्स इनटू योर एसेट्स। तो उसकी वजह से आपको मिनिमम से मिनिमम रहना चाहिए कि जितना नीड है उतना ही हो, एक्स्ट्रा करोगे तो आपके फंड्स ब्लॉक रहेंगे ना, इन कैश आएंगे नहीं तो फिर आपको दिक्कत होएगी। फिर फंक्शंस क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, टू सेटअप एंड मेंटेन इन्वेंट्री इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्राइज, टू ऑर्डर फ्रेश स्टॉक्स, टू रिप्लेनिश द इन्वेंट्रीज, टू कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, प्रॉपर्ली क्लासीफाई इंडेक्स द आइटम्स एंड ऑल। ठीक है, टेक्निक्स क्या रहती हैं,
ABC एनालिसिस कर सकते हो, EOQ एनालिसिस। आपने कॉस्टिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ABC एनालिसिस क्या होती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, उसमें आता है ABC कॉस्टिंग। EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतनी ही वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो, उसकी वजह से आपका कंट्रोल जो कॉस्ट होती है ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज वेरी मिनिमम। इसमें आते हैं ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई अंडर रूट करके आता है। ये पढ़ा हुआ हमने कॉस्टिंग में। अगर इफ़ यू हैव स्टडिंग, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव स्टडी कॉस्टिंग। अभी तक सेम 2 में होता है आई गेस, आई डोंट नो, don't remember, but yes, this is where you study ABC analysis and EOQ. Information monitoring is marketing logistic manager constantly want to the most recent data on stock, shipping and warehousing. So information regarding this is available on different modes of transport and all. ये सब कुछ in regard of warehousing and excellent management system, information system that MIS has maintained, that would be clearly extremely helpful in regulating expensive, enhancing the service and all. It is challenging to accurately estimate the information and operation cost. However, if accurate data is provided and recorded, it is more predictable and in near future कितना आपको चाहिए उसकी वजह से आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, नॉट अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, करेक्ट ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट, ABC एंड इकोनॉमिक क्वांटिटी इज देयर। ठीक है, तो क्वेश्चन बीच बीच में जो आ रहे हैं ना सॉल्व करते रहना। ठीक है, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली, जैसे हमने मार्केटिंग और उसमें डिफरेंस देखा था सेलिंग में, वैसे ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स में डिफरेंस होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, लॉजिस्टिक इज मच नैरोअर कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू सप्लाई चेन। इट डिनोट्स द फ्लो ऑफ दैट बिगिंस विद द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल टू द एंड कंज्यूमर तक पहुंचना इज एवरी पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, so it refers to the process of integrating all the activities in supply chain. SCM necessitates a high level of coordination among supply chain members to optimize the final customer happiness. All parties must be willing to exchange information and collaborate. ठीक है, तो ये सारी सप्लाई चेन रहती है सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर तक पहुंचने तक की। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है सप्लाई चेन के? सबसे पहले 5 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले इट इज़ प्लानिंग, देन सोर्सिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरिंग एंड रिटर्निंग इफ एनी, मतलब रिटर्न आना। सबसे पहले प्लानिंग, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम SCM द प्रोसेस यूजुअली begins with planning to match the supply with customer and manufacturing demands. Large entity often rely on ERP system जिसकी वजह से उनकी प्लानिंग मेंटेन रहती है। सोर्सिंग मतलब आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो अपना रॉ मटेरियल, अपना फिनिश्ड गुड, जो भी आपको चाहिए। द रॉ मटेरियल टू मीट द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस पेड फॉर द गुड्स, वेंडर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिलीवर एंड ऑल। ये सारे क्वेश्चन को आंसर करते हो इन सोर्सिंग पार्ट। देन मैन्युफैक्चरिंग, उस बेसिस पर आपको जो भी रॉ मटेरियल मिला उससे आप प्रोसेसिंग करते हो, दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। देन डिलीवरिंग इट टू द कंज्यूमर। The strong SCM processes, the customer has robust logistic capabilities to deliver through the channels to ensure timely, safe and inexpensive delivery of the product. Then returning, अगर आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया एंड कस्टमर को पसंद नहीं आया, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, देन वो रिटर्न करेगा, तो उसमें आप कितने ओके हो। Supply chain management concludes with the support of the product and customer returns. It's bad enough to that customer needs to return a product, and even if it's poor, to due the error of the company's part. तो this return process is often called reverse logistics, जो आपको भी ऊपर ही बताया, and the company must ensure it has the capability to receive return product and correctly assign refunds for the returns received. ठीक है, so with this our 4th chapter is also over and unit 4 is also over. Towards the last unit and with after that our syllabus will be over. So unit 5 में will be covering 2 chapters, promotion decisions and जो new marketing के concepts हैं। ठीक है, promotion decision में will cover concepts, promotion decision, communication process and then integrated marketing communication। ठीक है, easy। ठीक है, and starting off with the promotion का concept। promotion क्या होता है, मतलब बताओ, इतनी देर से वी आर डिस्कसिंग, राइट? ओके, तो प्रमोशन का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली आपने प्रोडक्ट बना लिया बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च, द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड सारी
टेस्टिंग एंड ऑल करने के बाद यू हैव मेड द प्रोडक्ट रेडी फॉर द कंज्यूमर मार्केट, देन यू हैव टू टेल द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट कि हाँ हाउ योर दिस प्रोडक्ट विल fulfill your needs and why you require this product. So basically it is the personal or the impersonal process of assisting or persuading a perspective of customer to buy a commodity or service or to act favorably upon the idea that has commercialized its significance to the seller. So this is what concept of promotion tells about. Promotion is basically vital element of marketing mix of the enterprise. It is a spark plug of the market mix. ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ बोलना है. जस्ट जो बेसिक वो बनाते हैं ना भूमिका टाइप्स वो बनाई है. प्रमोशन इज बेसिकली द पर्सुएसिव कम्युनिकेशन एंड टू बी इफेक्टिव इट मस्ट परफॉर्म 4 टास्क. क्या क्या? इट मस्ट गेन द अटेंशन ऑफ द कस्टमर. सेकेंडली इट शुड अराउज द इंटरेस्ट, हमने ऊपर भी देखा था ना. thirdly it must stimulate the desire of by convincing that of the prospective buyer to product utility. Lastly it must produce action in form of purchase. These charts can be summed up by AIDA: attention, interest, desire and action model. AIDA model. ठीक है. प्रमोशन प्लानिंग में मैनेजरियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एरिया में मैनेजरियल डिसीजन आते हैं. सबसे पहले प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होएगा, देन बजट क्या रहेगा उसका, देन चॉइस क्या रहेगी एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन क्या रहेगी प्रमोशन मिक्स की. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है प्रमोशन करने के? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके बाद डिमांड को स्टिमुलेट करना, मतलब इनडायरेक्टली डिमांड को क्रिएट करना जो कि कंज्यूमर्स को पता नहीं था बट आप क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो स्टिमुलेट करना डिमांड को. देन डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट कि आप कंपटीटर से कैसे अलग हो, यूटिलिटी क्रिएट करना एंड देन कंपटीशन एंड सेल्स को स्टेबलाइज करना एंड मेंटेन करना एंड देन बिल्डिंग द इमेज, पब्लिक इमेज बनाना प्रमोशन के थ्रू. इंपॉर्टेंस क्या रहती है? इंक्रीज्ड अवेयरनेस. जो ऊपर वाले प्रोडक्ट है बस सॉरी पॉइंट्स वही इन्होंने इसमें लिखे हैं. कस्टमर एंगेजमेंट, मार्केट डिफरेंशिएशन, बूस्ट इन सेल्स, ब्रांड बिल्डिंग, वही पॉइंट्स है. इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड क्रेडिबिलिटी. अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स पढ़ लिया हमने, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ लिया. प्रमोशन मिक्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स. ऊपर हमने मार्केटिंग टेक्निक्स देखा था, प्रोडक्ट मिक्स में हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखा था, इसमें हमने प्रमोशनल टेक्निक्स देखा. क्यों? यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू क्रिएट एंड मेंटेन सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. तो इसके टूल्स क्या क्या है? पर्सनल सेलिंग हमने पहले भी देखा था ना, ये जब हमने 7 P's पढ़े. प्रमोशन मिक्स में पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन. तो ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन मिक्स प्रमोशन मिक्स के टूल्स हैं. पर्सनल सेलिंग क्या होता है? जब फेस टू फेस सेल्स पर्सन आके बताता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ले लो आप, इसके ये बेनिफिट्स एंड ऑल. एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टीजमेंट देना पेड मेथड से, जैसे न्यूज़पेपर्स में या फिर बैनर्स लगाना, दैट इज़ योर एडवर्टाइजिंग. पब्लिसिटी इज़ बेसिकली नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़ अबाउट पब्लिश्ड मीडियम, तो रेडियो टेलीविजन पे बताना इज़ पब्लिसिटी. सेल्स प्रमोशन क्या होता है? एक्टिव सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करना, मतलब सैम्पल्स, कूपन्स, प्रीमियम ऑन सेल देना, कूपन्स, फ्लायर्स बांटना, दैट इज़ योर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स. टाइप्स क्या रहते हैं प्रमोशन मिक्स के? पुल ब्लेंड. व्हाट इज़ पुल ब्लेंड? तो पुल ब्लेंड इज़ बेसिकली जो इम्पर्सनल सेल्स एफर्ट्स पे ज़्यादा एम्फोसिस ले करे, जैसे द प्रमोशनल टूल लाइक एडवर्टीजमेंट या सेल प्रमोशन को ज़्यादा यूज़ करे, दैट इज़ ए पुल ब्लेंड. द पर्पस क्या रहता है? ऑफ रीसेलिंग इट टू द फाइनल कंज्यूमर, रीसेल करना टू द फाइनल कंज्यूमर सो दैट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एट रिटेल लेवल इज improved. The net effect of pull blend of promotion is to pull down the product from manufacturer to the consumer. पुश ब्लेंड क्या होता है? कि नीचे से ऊपर आना. पुश ब्लेंड इज द एम्फोसिस पर्सनल सेलिंग टूल पे फोकस करना. दिस टाइप ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज हैव इफेक्ट ऑन परसुइंग प्रोडक्ट थ्रू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फर्म्स अडॉप्टिंग दिस ब्लेंड वुड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेल फोर्स एट बोथ डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर लेवल. ठीक है. सो फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं कि आपका प्रमोशन मिक्स क्या होएगा? सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आपकी पॉलिसीज क्या है, ये देखो. अब अगर अटेंशन स्टेज पे हो गया, हमने AIDA मॉडल पढ़ा ना, वो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन. ये देखो AIDA मॉडल एंड प्रमोशन मिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ पढ़ लेंगे हम.
सो AIDA में सबसे अगर हम सबसे पहली स्टेज पे, दैट इज योर अटेंशन स्टेज. सो यू आर grabbing the attention of the consumer, then making the consumer aware about that product exists, देन प्रोवाइडिंग द वर्किंग नॉलेज की प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, आप कैसे यूज़ कर सकोगे, आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो इसमें आप प्रमोशन मिक्स क्या लगाओगे, ये हो आपका फर्स्ट स्टेज. और ये सेकंड स्टेज इज इंटरेस्ट, कि आपने उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर्स में इंटरेस्ट राइज कर दिया कि ये प्रोडक्ट आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपको आपने उसको बेनिफिट्स बताए उसके इंटरेस्ट गैदर करने के लिए. तो इन दोनों केसेस में आपका प्रमोशन मिक्स कैसे रहेगा कि आप एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, फेस टू फेस कंज्यूमर्स के साथ ज़्यादा रिलेट करोगे. ऐसे आपकी हैवी रिलायंस रहेगी इनके ऊपर. देन हैवी रिलायंस ऑन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सम ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है. देन हैवी रिलायंस ऑन पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग एंड सम रिलायंस ऑन पर्सनल सेलिंग एंड गुड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. देन अगर आप बाकी दो स्टेजेस पे, लाइक डिज़ायर एंड एक्शन स्टेज पे, डिज़ायर इज वेयर कस्टमर्स दैट दे वांट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कन्विंसिंग देम. देन एक्शन स्टेज, द कस्टमर आपको परचेज करने के लिए आप कस्टमर को परचेज करने के लिए कन्विंस कर रहे हो. इन दोनों स्टेजेस में पर्सनल सेलिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कस्टमर. गुड सेल्स प्रमोशन में बी नीडेड टू इनकरेज अ परचेज, कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. ठीक है. देन प्रमोशनल बजट, द रिसोर्सेज अवेलेबल, जो फाइनेंस रिसोर्सेज रहेंगे वो सब कुछ इफेक्ट करते हैं आपके प्रमोशनल मिक्स के डिसीजन को. बजट कितना है आपका. देन नेचर ऑफ मार्केट, कौन सी मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन कि आपका प्रमोशन मिक्स क्या रहेगा. देन प्रोडक्ट कैसा है, आप कौन से PLC के कौन से स्टेज पे हो. आफ्टर दैट प्रमोशनल मेथड्स आपके पास कौन से अवेलेबल है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी में नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देन द टेक्निक यू आर यूजिंग. ये सब प्रमोशन डिसीजन को, प्रमोशन मिक्स के डिसीजन को इफेक्ट करता है. देन व्हाट आर द प्रमोशन डिसीजन. प्रमोशन डिसीजन क्या होता है. सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस को व्हेन यू आइडेंटिफाई, देन यू हैव टू डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव, कि अच्छा आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो ऑब्जेक्टिव आप कैसे, कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन योर AIDA मॉडल. जैसे AIDA मॉडल में हमने क्या देखा, बताओ AIDA मॉडल के क्या वो थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. AIDA मॉडल, अटेंशन पहले देखते हैं, फिर इंटरेस्ट गैदर करते हैं, फिर डिज़ायर का अराउज करते हैं, फिर उनका परचेज डिसीजन लाते हैं, मतलब एक्शन लाते हैं. ठीक है. उसके बाद भी डेवलप द इफेक्टिव मैसेज कि हाँ क्यों हम प्रमोशन डिसीजन बना रहे हैं. देन वी सिलेक्ट द कम्युनिकेशन, कैसे पर्सन को बताएंगे, कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को बताएंगे कि हम ये प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट्स के बारे में. देन एस्टेब्लिशिंग द प्रमोशन बजट. देन डिसीजन रिगार्डिंग द प्रमोशन मिक्स, जिसके फैक्टर्स हमने ऊपर देखे. देन मेजरमेंट ऑफ प्रमोशन रिजल्ट, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे आपके रिजल्ट्स मैनेज हुए या नहीं हुए. देन इंटीग्रेटिंग द मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है. देन कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, वेरी बेसिक थिंग. सेंडर एनकोड करता है मैसेज को, देन डिकोड करता है रिसीवर, रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को. इसमें नॉइज़ आ सकती है, और सेंडर जब सेट करता है तो नॉइज़ आ सकती है, और रिसीवर को फीडबैक देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक थिंग. आई डोंट नो व्हाई इवन दिस इज इम्पॉर्टेंट हेयर. ओके. सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, what is this. So it is basically the process of synchronizing brands messaging so that it is consistent across all the media that the brand utilizes to reach its target audience. It is called integrated marketing communication. It is basically a planning process that is designed to assure that all the brand's contacts received by a customer or a prospect for a product, service or a organization are relevant to that person for the consistent of over time. ठीक है. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे पहले इट बिल्ड्स द ट्रस्ट, देन इट क्रिएट्स द कंसिस्टेंसी कि हाँ आप सही उसको सेल कर रहे हो. देन इट पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन बनाने में ईजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ROI भी आपकी आ जाती है. टूल्स क्या रहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में. पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो, पब्लिक रिलेशन सेट कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो. सारे मैंने बता दिया आपको, वही चीज़ है बार बार बताई हुई. करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट के हिसाब से रीड कर लेना एक बार, क्योंकि इसके ऊपर ना आपको एक एक के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है. कि PR के बारे में शॉर्ट नोट दो,
डायरेक्ट मार्केटिंग को दो, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, टूल्स क्या रहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हो मैसेजेस के थ्रू, कैटलॉग मार्केटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मेलिंग कर सकते हो, कैश मार्केटिंग कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो और ठीक है। Then we come up to, okay, so this chapter is also over, and towards the last chapter of this unit as well as of the syllabus, that is the developments in the marketing. तो इसमें कौन कौन से न्यू डेवलपमेंट्स इन द मार्केटिंग आई हैं, सस्टेनेबल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सोशल एंड डिजिटल, ये 4 मार्केटिंग है। सस्टेनेबल सारे तो नेम से ही क्लियर है। सस्टेनेबल इज बेसिकली नॉट हार्मिंग योर नेचर को प्रोटेक्ट करते हो, यू आर डूइंग द मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग इज रूरल एरियाज में यू आर डूइंग द मार्केटिंग, कैसे उनके हिसाब से योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज get changed and modified. And then social marketing is society को ध्यान रखते हुए, digital marketing is digital media को use करते हुए। यार basic things, benefits देखते direct। Benefits of sustainable marketing is bringing the clients from expanding market of eco-conscious consumers, staff members who are driven to change, increase the number of bids one receive as suppliers, fostering a solid reputation. Another advantage includes lower chance of violating and changing industry. Principles क्या रहते हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग के? इट इज़ कंज्यूमर फोकस्ड, कंज्यूमर वैल्यू। सस्टेनेबल मार्केटिंग में आप देख रहे हो आजकल ना ज़्यादा हाइप में है कि यू आर प्रोटेक्टिंग द नेचर, तो उसकी पैकेजिंग वैसे रखना, जैसे ब्लिंकिट्स एंड ऑल में आप देखते हो कि पेपर पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर लिखा होता है इट इज़ प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टिंग योर द नेचर, यू आर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो दैट इज़ वॉट सस्टेनेबल मार्केटिंग का एक इनिशिएटिव है। इनोवेटिव मार्केटिंग उसका पार्ट है, मिशन एंड द सोसाइटल। इश्यूज़ क्या रहते हैं? सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, अब तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो देन लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कम रहती है बिकॉज यू आर डूइंग वट अदर कंपनीज आर नॉट डूइंग द ग्रीन एफर्ट्स विदाउट डूइंग द एडिक्वेट टेस्टिंग। मार्केटर्स फ्रिक्वेंटली हैंडल दिस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज लॉसेज। देन रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है, बिहेवियरल चेंज आता है, ग्रीन वॉशिंग होती है, एंड देन मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन, एक्यूरेटली क्वान्टिफाइंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। Verifying the sustainability claim can be complex and require standardized metrics. ठीक है। इश्यूज़ क्या और भी है कि फ्रॉडुलेंट मार्केटिंग कहते हैं, गलत बता देते हैं कि ये हाँ सस्टेनेबल है कि नहीं, जबकि वो यूज़ भी नहीं हुआ था। कंज्यूमर्स अनप्रिडिक्टेबल कंडक्ट, ओवरऑल सस्टेनेबल इज लैकिंग, सिर्फ बोलने के लिए। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड वन, दैट इज़ आर रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग क्या होती है? जो आप मार्केटिंग मिक्स डिसीजन बना रहे हो फॉर द अर्बन मार्केट्स, द रूरल मार्केट्स, फॉर मीटिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इट हैज़ अ यूनिक डिफिकल्टीज क्या एंड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक जो कि इंडियन में ऑर्गेनाइज में ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इट प्रमोट्स द एक्सपेंशन इनटू इंडियन इकोनॉमी इन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। रूरल मार्केटिंग इज स्टिल नॉट फुली एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स ऑफ द एरिया ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रमोशन, उनके मिक्स नहीं डिसाइड हो पाते। 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रूरल मार्केटिंग के होते हैं? सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। ये चारों A's अगर रूरल मार्केटिंग में फुलफिल हो रहे हैं तो इट इज़ अ गुड रूरल मार्केटिंग एफर्ट। तो सबसे पहले जो भी आप रूरल मार्केटिंग कर रहे हो, कीपिंग इन व्यू द नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द रूरल पीपल, it should be affordable to them, that is it should be low cost goods, ठीक है, to satisfy the needs and wants of that consumer target market. Then availability, आप easily available कर रहे हो उनको अपनी छोटी छोटी दुकानों पे, it is easily available and consumer आराम से उसको स्विच भी कर सकता है। देन एक्सेप्टेबिलिटी, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यूज़र फ्रेंडली मैनर है। देन अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लार्ज एंड डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन इंडिया के, ये एक तरह से ना इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में ही है सारा रूरल मार्केटिंग। ग्रेटर कैपेसिटी टू परचेज, मार्केट एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लो क्वालिटी ऑफ लिविंग, ट्रेडिशनल आउटलुक एंड ऑल। देन मार्केटिंग मिक्स, इंपॉर्टेंस क्या रहती है इसकी?
they are vital for manufacturers and marketers. For example, if that is given to marketers, businessmen like HUL, ITC and many others focus on rural marketing. क्यों? The growth of rural market will determine the extent of future expansion. In actuality, the large corporation ought to view rural marketing as development marketing. क्यों? क्योंकि अगर छोटे एरियाज को वो कैप्चर कर रहे हैं तो एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी भी हो रहा है. So, and urban market is more or less saturated as a result of competition. So, as most of the potential customers are targeted by the marketers. ठीक है. स्टेप्स क्या है जो रूरल मार्केटिंग कर रहे हैं? ओनिडा ने की थी रूरल मार्केटिंग, PNG ने की थी, एग्जांपल्स हैं ये. कोलगेट ने भी की थी, फिलिप्स ने भी की थी. ठीक है, एग्जांपल्स है ये. रूरल मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या आना चाहिए? वही चीज़ें होंगी, चेंज तो कुछ भी नहीं होना. प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशनल मिक्स. ठीक है, वही चीज़ है. प्लेस मिक्स, पीपल, प्रोसेसेस वही है. ठीक है. देन इज सोशल मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग इज सोसाइटी के लिए. एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग टू प्रमोट सोसाइटल चेंज is the methodological use of marketing along with ideas and strategies to accomplish the particular behavioral objectives for the societal good. डिफरेंस क्या रहता है सोशल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में? सोशल मार्केटिंग हम सोसाइटी के लिए करें. सोशल मीडिया मार्केटिंग है जो सोशल मीडिया यूज़ करके हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जो नॉर्मल बिजनेसेस नॉर्मली भी करते हैं. ठीक है. So, in order to alter people's attitudes and behaviors for betterment of the society, social marketing uses marketing tactics and principles to raise awareness of the some social issue. Social issue, education हो गया, unemployment and all. इसकी marketing is social marketing. पर social media marketing is social media platforms को use करके marketing करना. दोनों में difference है. ठीक है. Advantages क्या रहते हैं? It contributes to improvement of company's reputation. It guarantees economic planning and all. CSR का पार्ट रहता है एक तरह से. Expand in long term growth and expansion, beneficial for long term connections and client retention. Components क्या होते हैं? Strategic components and operational होते हैं. Strategic में policy, strategy and implementation. Operational component होता है implementation only. ठीक है. So policy आप कैसे बना रहे हो, दैट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट. उसके बाद स्ट्रैटेजी, मतलब आप उसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ कर रहे हो, जो पॉलिसी बनाई है. डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो आप आउटपुट ला रहे हो. इश्यूज़ क्या रहते हैं सोशल मार्केटिंग में? इट इज़ द अल्टीमेट गोल इज़ टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट एंड सोसाइटी एज अ होल, नॉट टू द मार्केटर. ड्यू टू दिस इट डिफर्स फ्रॉम कमर्शियल मार्केटिंग बट ऑल्सो रिजेंबल्स NPO मार्केटिंग. Main player of social marketing is the target audience. Excellent social market is always completely focused on the target, on the optimum term to employ the customer, even though client and the target audience member can be used more or less interchangeably with this. ठीक है. Last is digital marketing. मतलब digital manner में online marketing करना is your digital marketing. This includes not only email, social media or web based but also a text multimedia message as a marketing channel. टाइप्स क्या रहती हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग की? सर्च इंडिया SEOs जो होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन ईमेल मार्केटिंग, देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अफिलिएट एंड कंटेंट मार्केटिंग. SEOs जो आप एल्गोस के साथ करते हो, कंटेंट इम्प्रूव करना, ऑथेंटिक ब्लॉग राइटिंग, सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड ऑल, सर SEOs का पार्ट है. ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO, पेपर क्लिक इज जितने आप क्लिक्स करते हो, जैसे आप यूट्यूब में भी देखोगे आपके CTRs आते हैं, वैसे ही होता है पेपर क्लिक. इसका फॉर्मूला होता है टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनका डिवाइड बाय एड क्लिक्स. कितनी बार आपकी एड्स को क्लिक हुआ, जो दैट इज डिवाइडेड बाय दी जितना आपने एक्सपेंस किया. जो भी आंसर आएगा दैट इज योर पेपर क्लिक. जितना ज़्यादा होएगा उतना बढ़िया कि आपको उतना एक्सपेंस पड़ रहा है. कंटेंट, एफिलिएट, इन्फ्लुएंसर एंड ऑल. चैलेंजेस क्या आते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते हुए? एस्टेब्लिशिंग अ कंटेंट मार्केटिंग प्लान, बजटिंग फॉर PPTs, पेपर क्लिक प्लान एंड डिटरमाइनिंग विच एड्स टू रन. जितनी अच्छी ऐड होगी उतनी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो आपकी उतनी कॉस्ट कम पड़ेगी पर यूनिट और आपका रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं. देन यूजिंग दी ओमनी चैनल, अलग अलग चैनल्स यूज़ करना. डिज़ाइनिंग विद मोबाइल एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन माइंड एंड ऑल. ठीक है. एंड विद दिस आर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस
unit is also over, and I hope you all understood what the topics that we did here, and we completed our marathon also. Unit 1 to 5 of the um, syllabus, that is of principle of marketing chapter, is syllabus is also over. I hope you liked it. You have covered maximum portion from this book, and if you want, I can share with you the book. Let me know in the comment section, and drop your email IDs. I'll share the book with you if you need it, and if you want notes, handwritten notes of these also I have prepared. Also, तो उसके लिए भी I'll share you with you a form. I have not completed the the notes. I've completed it till unit 3. I'll share you with वहाँ तक unit 4 and 5 के I haven't made that, because that is very basic things, and plus अगर आप यहाँ से भी read करोगे तो चल जाएगा. No need to worry. If you want to I can make it, but due to time constraint also I was not able to make it. So unit 3 तक I have made all the notes. अगर if you want that also, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, तो वो मैं आपके लिए साथ शेयर कर दूँगी. अदरवाइज बुक तो आई कैन शेयर, तो मुझे बता देना, ठीक है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लेट मी नो जो भी आपको चाहिए होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल.